So we're starting today. Hash tables करने लगे. I was going to call it a new data structures, but basically you're going to see कि ये आपके पहले से जो आपने data structures किए हैं ना, उन्हीं को एक थोड़े से नए concept के साथ इस्तेमाल करेगा. So essentially it is a new data structure, लेकिन इसके अगर जब आप end पे पहुंचोगे तो you're going to see कि बस essentially it is being implemented using the concepts that you've picked up before. एक छोटी सी concept की addition है इसके अंदर जो आती है. उसके बाद heaps if we do, or we probably won't be able to do it, लेकिन heaps भी जो है वो trees का ही kind of एक form होता है. So we've done basically all the foundational data structures, और उसी की basis के ऊपर you are going to see के बाकी सारे वाले बन रहे होते हैं. You are going to see ये वाला भी जो है इसका जो हम implementation choose करेंगे ये आपके previously done data structure. So we're going to do hash tables today. Quiz 4 जो है उसका time और उसका content decide करना. Let's go over the lecture first and then you can see के when you want the quiz और उसके अंदर binary search tree cover करना है या hash table भी cover दोनों करने हैं, किस तरीके से करना है. So one quiz that we have to decide at the end of the lecture. Or let me take attendance first, because then I'm going to miss this one. Abbas Moise. Present, ma'am. Abdul Rafi. Abdullah Jawad. Abdullah Yusuf. Ehsan Ashfaq. Ali Malik. Danish. Farhad Rahman. Farhan Elahi. Fatima. Present, ma'am. Fazila. Hamad Ijaz. Hamza Lakari. Hassan Shahid. Ma'am, Farhad present. Okay, Farhad is present. Fazila is absent. Hamad is absent. Hamza Lakari. Hassan Shahid. Hassan Ahmed. Present. Zaifa. Jahan Zaid. Maham Nadeem. Majid Iqbal. Mehran Ali. Mehroz Akil. Mehwish Noreen. Maz Ahmed. Present. Shahir Israr. Present. Oman Rahman. Present, ma'am. Mohammad Ahmed Abbasi. Yes, ma'am. Arham. Fasiuddin. Norez. Present, ma'am. Qasim Munir. Muhammad Sadiq. Muhammad Uzair. Muzammil. Rafia. Raisha Baz. Sabaha. Safi Zahid. Saleha. Sayyid Muhammad Abbas. Present, ma'am. Saleha is present. Sayyid Muhammad Abbas. Zaim. Temur. Zishan. Zubia.
मैम वो Present, ma'am. वेटिंग रूम में है। जी अरहम वेटिंग रूम में है मैम। जी, there are 5 people in the waiting room. Hassan, Zaim, Arham, Danish, and somebody else who just joined. I'm Jahanzib present. Jahanzeb is present. Danish Abhi just came in. Yes, ma'am. Danish present. Danish ka present ho gaya. Zaim just came in. Who else just came in? Mohammad Arham Latif, ma'am. Abdullah Yusuf, ma'am. Arham just came in. Present. Abdullah Yusuf is present. So nobody else in the waiting. Abdul Rafi in the waiting room. Abdullah Jawad abhi bhi absent hai. Ahsan Ashfaq, Ali Malik, Farhan, Fazila, Hamad, Hamza, Hassan Shahid, Huzaifa, Maham Nadeem, Majid Iqbal, Mehran, Mehroz, Mehwish, Qasim Sadiq, Uzair Muzammil, Rafia, Raish Abbas, Sabaha, Safi Zahid, Sayyid Muhammad Abbas, Taimur, Zishan, and is Zishan here? Zishan and Zubia. Ishan present, ma'am. Taimur is here. Zishan भी present Ma'am, है. Zubia present. Zubia I said present. जी Zubia भी present हो गया. Anybody else left? Abdul Rafi का मैंने लगा दिया. The attendance is done. Switch back. So we are doing hashing today, hash tables. So the reason that we need to look into hash tables is that if you've looked at the flow in which we've been doing the data structures, so you would have noticed कि हम ऐसे data structures की तरफ जा रहे थे जिसके अंदर आपको insert करना और फिर किसी element को ढूंढ के बेशक modify करने के लिए या delete करने के लिए we were looking at data structures जहाँ पर ये operations जो थे ये ज़्यादा faster होते जा रहे थे, जिसका एक example मैंने पहले तो ये example हमने देखा था कि let's say linked list से लेके अगर आप binary search tree के ऊपर आते हो तो you saw कि linked list के अंदर आपको sequentially हर possible element check करनी पड़ती है to get to the element that you were looking for. Binary search tree के अंदर आपने देखा था कि आपका जो काम है वो kind of split हो जाता है, so आप element के हिसाब से you can actually just say कि ये सारी की सारी nodes मैंने check नहीं करनी, so your work is essentially cut down. तो binary search tree की जो आप लोगों को project में मिला, those are a couple of trees जो कि अपने आप को balance करते हैं. तो उसके अंदर balancing भी आपने देखा था कि balancing भी जो है वो और efficient करती है आपके tree को, because अगर आप tree को balance नहीं कर रहे हो तो जिस तरीके से आपके insertions आ रहे हैं उससे accidentally या coincidentally आपके पास tree जो है वो किसी एक तरफ के ऊपर skewed बन सकता है, जिसकी वजह से again वो जो आपको benefit मिल रहा था tree बनाने से वो you kind of lose that benefit. So binary search trees के ऊपर फिर जो kind of modifications लगती हैं वो इसी तरह की different modifications जो होती हैं उनके अंदर मकसद basically यही होता है कि जब वो search tree बन रहा हो तो वो search tree बनाते हुए you keep an eye on the structure of the tree and you make sure कि किसी series of insertions की वजह से वो सारा का सारा tree एक ही side के ऊपर lopsided किस्म का ना बन जाए. So we saw कि फिर whichever one that you pick for your project, बेशक आप AVL tree pick करते हो या red black tree pick करते हो या कोई और pick करते हो, essentially उसके अंदर काम यही था कि आप binary search tree, regular वाले binary search tree से भी ज़्यादा efficient किस्म का search binary search tree के ऊपर आओ. And hash tables जो हैं, this is a technique that is going to provide even better performance, and because they're so fast, so you're going to see applications के लिहाज से these are used a lot. So ये इतने, how are they even faster than we're saying binary search trees या balanced वाले binary search trees? So जिस तरह से binary tree के अंदर concept था कि data जो आप store कर रहे होते थे वो एक key के हिसाब से कर रहे होते थे,
in the lecture with binary search tree तो हम handle ही सिर्फ की कर रहे थे, हम imagine कर रहे थे कि we were kind of ignoring the data itself so that we could focus on the algorithm. लेकिन जब मैंने आपको project दिया last lecture के अंदर, उसके अंदर मैंने थोड़ा सा hint दिया है कि किस तरह से आपने अपने key और अपने data को manage करना है. So hash table is another data structure जिसके अंदर आप key के की एक आपके हर डेटा आइटम के साथ एक की एसोसिएटेड होगी और जब आपने इंसर्शन करनी है इनटू योर हैश टेबल द इंसर्शन इज गोइंग टू बी डन डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ योर की. So your data is stored with a key and what you're going to do, so or the entire essence of the hash table is कि आपने एक किस्म की यूनिक मैपिंग जो है वो बनाई होगी फॉर ईच की, जो कि यूनिक मैपिंग का मतलब है एनी काइंड ऑफ लेट्स से इन सिंपल वर्ड्स आप कह सकते हो कि मैंने एक मैथमेटिकल फंक्शन रखा होगा और जिस भी की के ऊपर मैं वो मैथमेटिकल फंक्शन अप्लाई करूंगी, आई एम गोइंग टू डिजाइन द मैथमेटिकल फंक्शन इन सच अ वे कि वो उस की के ऊपर कुछ प्रोसेसिंग करके मुझे एक नंबर आउटपुट करके दे दे एट द एंड. So that unique mapping is going to take my key and convert it into an integer, let's say, or a positive integer in fact. So you want an integer from that is processed out of your key और फिर वो जो integer है उसको आप essentially speaking एक array के अंदर, so instead of doing this, so we have an array और array को जब आप बेसिक लेवल के ऊपर इस्तेमाल करते थे तब तो आप ऐसे इस्तेमाल करते थे कि पहला एलिमेंट इधर डाल दो, दूसरा एलिमेंट इधर डाल दो, तीसरा इधर डाल दो, चौथा इधर डाल दो, पांचवा इधर डाल दो. एंड इफ आई हैड टू लुक फॉर दिस एलिमेंट तो फिर मुझे फिर से 1 2 3 4 5 स्टेप्स लेने होते थे एंड सो ऑन. बट नाउ वी आर सेइंग कि अब हमने सीक्वेंशियली नहीं स्टोर करना, हमने हर ऑब्जेक्ट के साथ एक की एसोसिएट की होगी और उस की के हिसाब से हम एक नंबर कैलकुलेट किया करेंगे एंड वट एवर दैट नंबर इज. सो लेट्स से मेरे पास पहला वाला आइटम आया, आप लोग अकाउंट्स कर रहे हो अपने बाइनरी सर्च ट्री के अंदर, सो वी कैन से कि पहला अकाउंट मेरे पास आया, मेरा की जो है वो अकाउंट नंबर है, सो इट्स सम कोई नंबर होगा किसी किस्म का एंड आई कैन से कि इसके ऊपर मैंने किसी किस्म की प्रोसेसिंग करनी है ताकि मेरे पास एक इंटीजर आ जाए जो कि इस एरे के अंदर इस एरे के इंडेक्स नंबर्स के साथ फिट हो सके. So I'm kind of leaving this out on purpose कि वो प्रोसेसिंग क्या है, बट लेट्स से कि जब आपका अकाउंट नंबर प्रोसेस होता है तो वो मुझे आंसर देता है 4, तो आई एम गोइंग टू प्लेस दैट अकाउंट डेटा नोड इनटू दिस स्लॉट. इसका मतलब है कि जब मैंने इस अकाउंट को फिर से एक्सेस करना होगा तो the only thing I need to do is I don't need to do पहले इस पे जाओ, फिर इस पे जाओ, फिर इस पे जाओ, फिर इस पे जाओ. I only need to run this function again. So ID नंबर मेरे पास होगा, मैं यही वाला फंक्शन फिर से चलाऊंगी. It will tell me that your information is sitting at this number और मैं एक ही jump, so I essentially just have to do that one operation and I will land into my array element जहां पर मैंने वो डेटा रखा हुआ. So इस चीज को अब जो सारा मैं कह रही थी कि आपने कोई मैथमेटिकल फंक्शन या कुछ रखा हुआ है, दिस मैपिंग ऑफ अ की of any key in your data to a specific location in an array is basically इसको आप hashing कहते हो and this is handled by the hash operation that you are going to be using. So इसलिए आप इस चीज को hash table कहते हो क्योंकि इसके अंदर जब आप elements डाल रहे होते हो तो वो एक hash operation के basis के ऊपर चूज होता है कि कौन से एलिमेंट कौन से इंडेक्स के अंदर इस डेटा को डालना है. सो फॉर योर हैश ये अगर 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 हमारे पास पिछली साइड पे 2 मिनट आएगी वाली साइड जी, यहाँ पे मिस अगर जो की है आपने कहा कि कोई मैथमेटिकल फंक्शन हमने अगर बना दिया फॉर इंस्टेंस इट कन्वर्ट्स द की टू एन इंटीजर और यहाँ पे की आपका अकाउंट नंबर था, तो अगर आप कोई मैथमेटिकल फंक्शन ना यूज करो और आपकी की इज जस्ट एन इंटीजर वैल्यू दैट्स जस्ट
जैसे कि हम कह लें कि हर नोड का एक नंबर होगा, लाइक नोड नंबर 1 2 3 4 which Directly corresponds उसको- to an account number. तो उस पॉइंट पे फिर आप यानी कि एक ही जंप से आप अपनी वैल्यू को कैसा ढूंढोगे, क्योंकि अगर आपका यूनिक की नोड का नंबर होगा तो फिर wouldn't you have to visit each node to eventually land on that node number, the one you're looking for? So I understood half of your question because आपकी आवाज ब्रेक हो रही थी. Let me repeat जितना मुझे समझ आया फिर आप इसको cover करो. You're saying कि are you saying that you are considering a possibility जहाँ पर आप की को ही इसके की के हिसाब से ही इंडेक्स के अंदर डाल दो without hashing? जी, So- I think I mean विदाउट हैशिंग का मुझे नहीं पता, बिकॉज अभी ये कॉन्सेप्ट अभी पढ़ रहा हूँ मैं, लेकिन मेरे कहने का मकसद ये बस ये था कि यहाँ पे अगर की को आपने अकाउंट नंबर दिया हुआ है, राइट, तो मैं बस ये कह रहा हूँ कि इफ यू रिप्लेस दिस अकाउंट नंबर विद जस्ट इंटीजर वैल्यू जो ऑटो इंक्रीमेंट होते हैं विद द इंसर्शन ऑफ यू नो डिफरेंट अकाउंट नंबर्स या वैल्यूज, तो फिर वो उसको कैसे यानी कि देखा जाएगा थ्रू हैश? अभी तो मैंने हैश ना आपको ये भी नहीं बताया कि इसका हैश कैसे कर रहा है. आई जस्ट सेड कि मैंने ऑन पर्पस इसको इस वक्त खाली छोड़ा है. यू जस्ट इमेजिन कि आपके पास कोई प्रोसेस है जिससे ये चीज नंबर में चली जाती है. हम थोड़े से एग्जांपल्स इसके देखेंगे और एक्चुअली ये काफी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होती है, लेकिन हम इसको थोड़े से लेवल के ऊपर मिस मेरा एक सवाल है. क्या एग्जैक्टली. तो अभी तो मैंने इसको ऑन पर्पस खाली छोड़ा हुआ है. आई एम गोइंग टू शो इट टू यू, देन मे बी रिपीट योर क्वेश्चन अगर उस वक्त भी क्लियर नहीं हुआ. जी अब्दुल्ला. मिस अगर कोई दो ऐसे डेटा हो जिनका सेम आ जाए हैशिंग नंबर, उसको हैंडल करेंगे. just wait a couple of slides. ये प्रॉब्लम आएगी और ये बड़ी जल्दी आ जाएगी. so we'll see how to handle that essentially. but जी one question, स्टोरेज के लिए हम लोग रे ही यूज कर रहे हैं जो वैल्यूज जहाँ पे एक्चुअली स्टोर हो रही है, for या कोई you are going to see कि अभी थोड़ी किसी किस्म की कॉम्बिनेशन आ जाएगी, but essentially yes. essentially you need, जब आपने एंट्री करनी है ना, तो आप एंट्री कर रहे होगे एक इंडेक्स नंबर के हिसाब से. so इंडेक्स नंबर क्योंकि एरे का होता है, तो we need something like an array in which we can stick our data elements in. so generically you are seeing कि उसको hash table कहा जा रहा है. तो anything that we can kind of design to act like kind of a table, और array वो बहुत आसानी से हो जाती है. so in a lot of the examples you are going to see कि वो array ही रखी होगी. हम जो implementation देख रहे हैं उसमें भी हमने array ही रखी होगी. तो generally speaking array के साथ ही आप start करते हो, because you need a number जिसके through आप उस data structure को access कर सको, because we are basically inserting with the help of a number. so our hash operation is going to require a key, and it is going to take the key and it is going to produce a positive integer जिसको आप इस्तेमाल करके अपने hash table के अंदर insert कर दोगे जिस जगह के ऊपर भी आपने करना था. या मे बी आप सिर्फ लुकअप करना चाह रहे हो या डिलीट करना चाह रहे हो, उस केस के अंदर भी यही होगा कि आपको की मिलेगी, आप उसके ऊपर वही वाला हैश फंक्शन फिर से अप्लाई करोगे एंड यू आर गोइंग टू लैंड एट द सेम लोकेशन जहां पर आपने इसको इंसर्ट किया हुआ था. So in this simplest case, if we don't do anything, we just say कि जो मेरी की है वो ही मेरा उस इंडेक्स के ऊपर मैंने रख देना. तो I would be doing something like this कि I have an array of size 7 और मेरा पहला जो की आया है उसका वैल्यू 3 था. तो अगेन आई एम नॉट डूइंग रेगुलर एरे इंसर्शन जिसमें मैं पहले वाले में डालती हूँ फिर दूसरे वाले में डालती हूँ. मैं कहूँगी कि क्योंकि मेरी की 3 है, आई वांट टू पुट इट ओवर हियर. क्योंकि अब मेरी की 1 है, आई वांट टू पुट इट ओवर हियर. सो इस तरह करके मैं अपना एरे फिल अप कर दूंगी. एंड इफ आई वांट टू से लेटर कि मुझे 3 लुकअप करके दो, तो मुझे पता होगा कि 3 मुझे इसी पोजीशन के ऊपर मिलेगी. आई एम नॉट गोइंग टू हैव द हैसल ऑफ गोइंग थ्रू एनी अदर एलिमेंट्स at this point to find whatever I was looking for. So सबसे basic, सबसे simple case ये है. This case is to explain the concept to you. Practically ये होता नहीं है, but essentially this is the idea. If I have
one thing that is going to happen, one of the problems that is going to happen is जिसकी वजह से आपके पास थोड़े बेहतर वाले हैश फंक्शंस होते हैं, you don't do something as simple as this, is कि आपके पास 7 की जगह है और आपको की जो है वो मिल जाती है 9, या आपके इंडेक्स हैं ही 6 तक और आपको की मिल रही है 9. So we need a better way. It's सिर्फ इस तरीके से आपका ये टॉय किस्म का एग्जांपल ही चल सकता है. So we want to design our operation in such a way कि उस की को हम कोई ऐसी चीज करें कि ये कन्वर्ट होके किसी वैलिड एरे इंडेक्स के अंदर कन्वर्ट हो जाए. उसको करने का आपके पास जो सिंपलेस्ट वे एंड द मोस्ट कॉमनली यूज्ड वे, एटलीस्ट जितने आप लोग असाइनमेंट या एक्सरसाइजेस करोगे या टेक्स्ट बुक्स देखोगे तो उसके अंदर फौरी तौर के ऊपर जो तरीका दिया होता है, दैट इज बेसिकली बाय अप्लाइंग द मॉड्यूलस. लेट्स से कि आपकी की 9 है, तो आपने कहना है कि मेरा हैश फंक्शन जो है दैट इज बेसिकली द की mod the size of your table. So this is kind of a very basic hash function जो आपको commonly मिलेगा text books में, tutorials वगैरह के अंदर. So this is a simple solution that you could use, जिसके अंदर आप कहोगे कि अगर मेरा table size 7 है और मेरे पास की जो है वो 9 है, तो I'm going to do a 9 mod 7. मेरे पास answer 2 आएगा, so I'm going to place the key over here. But miss, obviously वो इस point पे वो एक दफा check भी करेगा ना कि उस index पे या उस key पे पहले कोई value तो नहीं पड़ी हुई. Yes. So this problem is we are going to have this ये problem है. So it is going to happen. So आप repeatedly ये recognize कर रहे हो already कि ये हो सकता है कि आप एक function 2 keys के ऊपर लगाओ और वो दोनों keys same आपको index के ऊपर ले जाएं. So it is very common for this to happen. और इसको you refer to it as a collision because आपके पास एक ही जगह एक ही value के ऊपर 2 key values hash हो रही है into the same value. So this creates a collision. और इस collision बहुत simple सा भी अगर हम अपने simple example में भी देखें ना, तो फौरन से आपके पास collision आ जाएगा. So let's say we have a same example जिसके ऊपर हमने mod का extension लगाया हुआ है. So पहले मेरे पास 1 आया, मैंने किया 1 mod 7 यहाँ पर डाल दिया. मेरे पास 3 आया, मैंने किया 3 mod 7 यहाँ पे डाल दिया. If I get a 10 and I do a 10 mod 7, I'm going to get the collision over here. I have something sitting there already. So what I want to do is, so इसके solutions होते हैं, but the most common solution is कि आप chaining करो. So what you are going to do is we're going to add in another data structure to handle this. And what we're going to do is कि जितनी भी keys आपकी same value create, जिनसे same hash value create होती जा रही है, what you're going to do is you're not going to restrict yourself to an array. आप in fact कहोगे कि जो मेरी array है, I am going to associate each of these slots with not just one location to hold values, but I'm going to say कि कुछ जगहों के ऊपर इसको जिस तरह से generic language में hash table कहा जा रहा है, उसी तरह से it's normally stated in textbooks कि आप कहते हो कि मेरे पास यहाँ पर एक पूरी bucket है. So you're not, अगर आपके पास, so we're going to say we have a bucket over here and we have a bucket associated with each of these values. और अगर मेरे पास एक collision आ गया, तो पहली वाली चीज पहली जगह के ऊपर पड़ी होगी, and then you can add on the second one if there is a collision, and you can keep extending yourself like that. अब इसके अंदर आपका जो पहली चीज जो आप ढूंढ रहे हो वो hash. So if I put in, मेरे पास 3 था, मैंने 3 रख दिया, उसके बाद मैंने 10 भी इसके साथ place कर दिया. If I'm looking for the 10 after inserting it, if I'm looking for the 10 again, तो मुझे ये करना होगा कि मैं hash function लगाऊंगी. I will land over here and then I will go through this data structure to find my 10. So अब वो आगे से फिर कैसे ढूंढना है, that is going to depend on कि मैंने उस bucket को अब implement किस तरीके से किया हुआ है. So this is basically आप कर दे, the process itself is called chaining.
क्योंकि आप एलिमेंट्स को एक के साथ दूसरी के साथ उनको काइंड ऑफ यू क्रिएट अ चेन एंड ऑल द कीज जो कि एक पर्टिकुलर इंडेक्स क्रिएट कर रही होंगी वो एक उस पर्टिकुलर पोजीशन में चेन के तौर के ऊपर सेट हो जाएंगी using any kind of other data structure. So the implementation that we are going to be doing is कि हम अपने हर table entry के साथ, and our table entries is going to be basically an array, हम अपने हर table entry के साथ एक binary search tree associate कर देंगे so that you are going to have, for instance, 0 के ऊपर there is going to be a binary search tree जिसके अंदर वो सारी की सारी elements होंगी जिनका hash के result में 0 आया होगा. 1 के अंदर 1 index के अंदर वो एक binary search tree होगा जिसमें सारी वो वाली elements होंगी जिसके hash के result में आपके पास 1 आया होगा and so on. So for all of these values you are going to have a binary search tree associated with it और जौन सी hash उस number के ऊपर evaluate होते जाएगा आप डायरेक्टली उस बाइनरी सर्च ट्री में चले जाओगे और उसको इंसर्ट कर दोगे. इन सच अ स्मॉल एरे इट इज लुकिंग लाइक के मे बी इट्स काइंड ऑफ एन ओवरकिल, लेकिन जब ये आपके डेटा सेट्स बड़े हो जाते हैं तो दिस बेनिफिट, इसका बहुत ट्रेमेंडस लेवल के ऊपर आपको बेनिफिट मिलता है बिकॉज इसेंशियली आप बहुत सारा काम जो है वो अपना कट डाउन कर रहे होते हो. तो इंस्टेड ऑफ हैविंग वन ह्यूज इस पर्टिकुलर इम्प्लीमेंटेशन में, instead of having one huge binary search tree to travel through, you're going to have a lot of tinier binary search trees जिसके अंदर से आपका search almost फौरी तौर के ऊपर हो जाएगा compared to what would have been happening inside a regular sized binary search tree for that same amount of data. So for instance, if we have, इधर मैंने search tree अभी बनाया तो नहीं है, but we can ऐसे करेंगे तो ये सर्च ट्री बन जाएगा. इफ वी हैव द वैल्यूज, हम वही वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हैं कि आपने मॉड करना है, द की को मॉड करना है विद द साइज ऑफ योर कंटेनर. सो अगर आपके पास 1 आएगा तो 1 mod 7 जो है वो 1 आएगा, इट्स गोइंग टू बी प्लेस्ड हियर. नेक्स्ट हमारे पास 3 आया, 3 is going to be placed over here. Next आपके पास 7 आया, 7 is going to be placed over here. उसके बाद आपके पास 8 आया, 8 mod 7 का आपके पास आंसर 1 आएगा, so you're supposed to place your element over here. अब आपको chaining करनी पड़ेगी, so we create a chain over here. Then we get the next value which is a 10. 10 के लिए आपको again chaining करनी पड़ेगी because the answer that you are getting is a 3. which means it has to fit in here. You have a value sitting over here already, तो आप 10 को इस value के साथ chain कर दोगे. उसके बाद you are going to have a 13. 13 mod 7 करोगे तो you are going to get the answer 6, which will tell you कि इसको मैंने इस location के अंदर जाके fit करना है. So essentially this is your आप hash value calculate करोगे and then you are going to put it into a chain in that particular position. So you can do chaining with lists as well. So just to give you kind of a broader perspective कि ज़रूरी नहीं है कि hashing ऐसे ही हो कि आपने array के साथ binary search trees attach किए हैं. You could also have, let's say, an array जिसके अंदर आपने linked lists डाली हुई हैं. So what we're doing is इस insertion के अंदर we're assuming कि आपके पास ये वाली values insert हो रही हैं. या ये वाली keys insert हो रही हैं. So your keys are the first 10 perfect squares, which would be, पहले आपके पास आएगा 1, उसके बाद आपके पास आएगा, let me just write down the insertion order of the keys. उसके बाद you are going to get a 9, उसके बाद you are going to get a 16, a 25, a 36, and an 81. These are our keys. ये आपका array है और हर array की जो element है that is essentially a linked list. So सबसे पहले आप कहोगे कि 1 को insert करना है. हमारे पास 10 spaces हैं.
So the size of our hash table is 10. जी 0 नहीं आएगा क्योंकि फर्स्ट 10 लिखा हुआ है. Yes, we have a 0 as well. Perfect square. So 0 include कर लें. These are our keys. So these आपके पास insertion ही आ रहा है. So the first thing you are going to do is you are going to say कि 0 insert करो. You are going to do a 0 mod 10 and you are going to say answer मेरा 0 आया, so I am supposed to place this key into this location. उसके बाद आप करोगे 1 mod 10. So you are going to say अब मैंने इसको 1 में place करना है. So I'm just going to delete this first and I'm going to say कि आपने इस जगह के ऊपर यहाँ पर एक 1 डाल दिया. ये सारी मैं अगर कट कर दूँ. उसके बाद you are going to say 4 आया, 4 को mod किया 4, 9 को अगर आपने mod किया तो you are सॉरी टू इंटरप्ट यू, बस ये बता दें आपने 81 को कट क्यों किया? Because जो मेरा ये जो है ना, ये आपको फाइनल डायग्राम इकट्ठा मिल गया. आई एम ट्राइंग टू जस्ट वॉक थ्रू द सॉल्यूशन. ओ अच्छा ठीक है. ठीक है. सो मैं कह रही हूँ कि ये अब मैंने जो छोड़ी है ना, दीज आर बेसिकली द वंस जो पहले आएंगी इन पोजीशंस के अंदर. सो पहले आपके पास आया 0, फिर आपके पास आया आपने 1 रख दिया, 4 रख दिया, 9 रख दिया, 16 रख दिया, उसके बाद 25 रख दिया. जब आपने 36 रखा, तो 36 mod 10 is you have 6 left over, which means you need to place it over here because this is a linked list, and if you remember कि linked list सादी वाली जो होती है उसके head के ऊपर insert करना सबसे easier होता है. So that is why you're seeing अब आप कहोगे कि now I can place the 36 over here. Now you can say कि अब 36 भी है और 16 भी है और आपके पास ये वाली चीज यहाँ पर डाली हुई है. So there are actually इसको इस तरफ डालने के 2 रीजंस बेसिकली काइंड ऑफ कोट किए गए हुए हैं. इस जैसे मैंने एग्जांपल लिए बेसिकली एक तो ये है कि वो अगर आप सिंगली लिंक लिस्ट ले रहे हो तो दिस इंसर्शन इज जस्ट इजियर फॉर दैट पर्टिकुलर लिस्ट इफ यू रिमेंबर फ्रॉम योर वेरी अर्लियर लेक्चर्स. उसके अलावा देयर इज आल्सो दिस काइंड ऑफ रूल ऑफ थंब कि जौन सी चीज बाद में लोगों ने इंसर्ट की होती है, जो डेटाबेस इस्तेमाल कर रहे होते हैं, बाद में इंसर्ट हुई हुई चीजों को एक्सेस करने का लाइकलीहुड ज्यादा होता है. सो this decision of inserting the first collision that or the subsequent collisions that arrived on this side, वो इस चीज को भी सपोर्ट करेगा क्योंकि जो रिसेंटली एडेड चीजें हैं उनको पहुंचने का आपके पास रास्ता जो है वो ज्यादा इजियर होगा. So that is why you're seeing 16 over here, 36 over here. 36 के बाद आपने 49 डाला. 49 mod 10 is going to be 9. So you're going to add 49 into the head of this list. So आपको 49 भी यहाँ पर आना शुरू हो जाएगा. उसके बाद आपने 64 insert किया. Your answer is going to be 4. So you're going to have to insert it into the head of this list, and then you're going to insert your 81. जिसके अंदर you're going to get the answer 1. उसको यहाँ पर insert करने की आप कोशिश करोगे because this will already be sitting here from your this insertion. तो आप उसको उसके list के head के ऊपर डाल दोगे. So this is basically how your hashing और फिर उसके अंदर chaining is going to work in order to make sure कि आपकी सारी की सारी elements जो हैं वो काफी बेहतर तरीके से एक्सेसिबल हो जाएं. एक्सेसिबल इन द सेंस के एफिशिएंट तरीके से एक्सेसिबल हो जाएं. सो इसको आप एग्जैक्टली इम्प्लीमेंट कैसे करोगे? सो यू कैन यूज एन एरे डायरेक्टली, और यू कैन से कि आप कोई अगर आप फॉर इंस्टेंस सी की STL की इम्प्लीमेंटेशंस के अंदर से एरे इस्तेमाल करना चाहते हो, यू कैन से इसके अंदर हुआ है कि you have made a vector of lists. So this is your vector and these are your lists inside each of the vectors. So ये एक list हो गई, ये दूसरी list हो गई, ये तीसरी list हो गई. So one possible way of a concrete implementation of this would be कि आप उसको क्या तो hash table रहे हो और हम शुरू array से हुए थे, but हम कोई array की थोड़ी सी pre-implemented form भी इस्तेमाल कर सकते हैं, which is essentially what a vector is जब आप STL इस्तेमाल कर रहे हो. तो so it's not necessary कि आप lower level के ऊपर array के ऊपर ही बैठ के कर रहे हो. Essentially what you want is a structure जिसके अंदर इस dimension के अंदर आप
नंबर के तौर के ऊपर इंसर्ट कर दो और उसके बाद इस डायमेंशन के अंदर किसी तरीके से आप चेनिंग इंप्लीमेंट कर सको. So for example over here you have a vector of lists और उन lists के अंदर आपने अपना hashed object जो है उसको insert किया हुआ है. So what again अगर आपने सारी की सारी चीजें insert कर दी हुई हैं and if I now say कि मुझे 9 find करना है for example, तो मैं basically I'm just going to do a 9 mod 10 again because 10 is the size and 9 key is the one that I'm looking for. मेरे पास answer 9 आएगा. I am going to go over here and my work is going to be reduced to now having to just look through this particular list. और एक search के बाद मुझे यहाँ पर मिल जाएगा. So this is how I would do a search. So and this was basically your insert जो मैंने पीछे explain किए. अब so अभी तक हमने जो example देखे हैं तो उसके अंदर हमारी जो key थी वो basically वो भी numeric ही थी. So हम numeric से एक positive integer calculate आसानी से कर लिया था. But you're not always आपके जो भी आपका context होगा या जौन सा भी आप problem solve करने की कोशिश कर रहे होगे उसके अंदर it's not necessary that you are always going to have keys that are integers. So जब आपका key integer नहीं है कोई और type है तो आपकी फिर जो generation है of the index या जो hash function है वो थोड़ा सा और complex हो जाता है. But still there are ways to do it. Again हम थोड़ा सा simple सा तरीका इसका देख रहे हैं और थोड़ा सा हम देखेंगे भी कि फिर simple तरीके को जब आपने बेहतर करना है तो what are the things that or why are we calling this simple और फिर जब इसको बेहतर करना है तो what are the things that you want to keep in mind. But one अगर आप सोचते हो ना कि आपके पास एक string है और आपने या आपके पास a set of strings हैं which are your keys and you want to set up a way कि हर string के साथ एक number associate हो जाए. So one of those ways could be कि आप उस string का हर character का ASCII value निकालो और उन सबको add up कर दो and then you can say कि for instance कि Smith का key जो है Smith के key के साथ जो hashing के बाद आपके पास associated value आती है जिसको आप use करोगे as an index वो आपके पास 549 आ जाएगी because these are the ASCII values associated with each of these letters. So if for instance if you do get something which is non-numeric और उससे आपने number निकालना है तो you can set up some kind of a method which looks like this. So you need for non-integer keys you will need to set up you will need to see what are the ways in which we can convert this into a number जिसको फिर हम index के तौर के ऊपर इस्तेमाल कर सकें. So इसको अब again you have to make sure that it fits within a table size. So इसको अगर मैंने actually implementation में इस्तेमाल करना है तो I'm going to say कि इन सबको add up करो और फिर इसको table size के साथ mod कर दो ताकि जौन सा भी table size मैंने अपने लिए select या इसको इस्तेमाल करते हुए select किया गया है वो उसके किसी valid index के अंदर जाके land करे. So हमने बना लिया. It's not a very good one, but this is the basic way in which you are going to be handling keys जो कि non-numeric हो. मैम ये line 5 का कोड क्या कर रहा है? Which one? ये वाला? Line 5. This is basically a shorter kind of syntax for you to write the ये वो for loop है जिससे आप अपनी character इस string के हर character के through जा रहे हैं. So it's basically अगर आपका I is equal to 0, I is less than key का length and then उसको increment करो. So यहाँ पर you will be basically doing ये जो आपका character है ना you will इस character की जगह you will just write key I. You're iterating through the आप इस string के हर character को पकड़ रहे हो बारी बारी. So this is just a this is a simpler loop जो कि आपकी the C++ actually provide करती है लेकिन थोड़ी सी newer version provide करती है. So and you're going to see it in other languages as well. It's just a way to iterate through the characters of your array जो आप ऐसे भी लिख सकते हो. तो ऐसे तो आप लोग लिखते ही हो वैसे.
So what this is doing is key के अंदर आपके पास जो भी चीज आ रही है, वैल्यू जौन सी भी आई है, so let's say अगर स्मिथ आई है, it is going to this, sorry, स्मिथ आई है, तो ये वाला जो for loop है, this is basically saying कि for every character in key do this. So the first character in key is s. So s की ASCII वैल्यू हैश वाल को हमने 0 से स्टार्ट किया, s की ASCII वैल्यू इसके अंदर डाल दो, देन फॉर द नेक्स्ट कैरेक्टर इन योर की उसकी वैल्यू हैश वाल के अंदर एक्यूमुलेट कर दो, उसके बाद फॉर द नेक्स्ट वन इन की इसको कर दो. सो यू डोंट हैव टू यूज द सिंटैक्स, आप इस वाले सिंटैक्स से भी यही वाली चीज अचीव कर सकते हो. Then when you have accumulated the ASCII values of each one of these characters, उसको आपने मॉड कर देना है टेबल साइज के साथ, ताकि आपके पास एक ऐसी वैल्यू आए जो टेबल साइज के इंडेक्सेस के किसी एक के अंदर फिट आ सके. So you would do something like this. This is not a great function, but essentially this is what you would do. अगर आपके पास फॉर इंस्टेंस की जो है, इट लुक्स, जो आपके डेटा मेंबर्स हैं उनकी कीज ऐसी हैं, मे बी आपके पास IPs आ रहे हो या कोई ऐसी चीज आ रही हो, उसको आपने किसी तरीके से करना है. उस केस के अंदर फॉर दिस एग्जांपल यू कांट एक्चुअली डू दिस, लेकिन इसको भी हम कुछ कर सकते हैं. लेकिन अगर आपके पास ऐसे नंबर्स हैं जिसके अंदर, सॉरी, नॉट IP वैल्यूज बट यू हैव अ रियल नंबर लाइक दिस, तो उसको कन्वर्ट करने का एक आसान तरीका हो सकता है कि इस चीज को बस ड्रॉप कर दो एंड कन्वर्ट इट इनटू a number that can be used as an index. So ये जो प्रोसेस है कि करना क्या है, इसके अंदर बहुत सारी चीजें आप कर सकते हो, but essentially we are just looking at some very trivial ways of doing this so that we can then say कि ये kind of imagine कि ये extend किस तरीके से हो सकते हैं. हम जो implementation cover करेंगे उसके अंदर simple सा ही तरीका हमने किया हुआ है, but essentially this is a complex field जिसके अंदर काफी इंटरेस्टिंग तरीकों से हैशेस वगैरह कैलकुलेट हो रहे होते हैं. और इनफैक्ट ये जितने भी आपकी डेटा इनक्रिप्ट हो रही होती है while it is passing over the internet and all, तो ये उसके अंदर भी जो इंक्रिप्शन का जो इस्तेमाल हो रहा होता है तरीका, वो भी बेसिकली कोई हैश फंक्शन इस्तेमाल करके ही हो रहा होता है. तो इसके अंदर बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटी आती है, बट एसेंशियली व्हाट यू वांट ओवरऑल इज द एसेंस इज दिस कि आपके पास कोई की होती है जिससे आप अपने डेटा को आइडेंटिफाई कर सकते हो और उसको ट्रांसफॉर्म कर देते हो आप किसी न्यूमेरिक फॉर्मेट के अंदर, ताकि आप उसको इस हैश टेबल वाले केस के अंदर आप ताकि उसको किसी एरे की इंडेक्स के अंदर फिट कर सको. फॉर योर सिक्योरिटी एल्गोरिथम्स उसका मकसद होता है कि इसकी शक्ल ऐसी बन जाए ताकि जब ये ट्रांसफर हो रहा हो तो कोई डिटेक्ट ना कर सके कि ये वाली चीज क्या थी. दिस इज, अब वो हैशिंग फंक्शन करता है क्या, वो बहुत कॉम्प्लेक्स फील्ड है, वो हमारा पर्पस नहीं है. हमने बेसिकली देखना है कि हमारे पास हैश फंक्शन अगर है या एक सिंपल सा हैश फंक्शन हम खुद बना लेते हैं, तो फिर हमने उसको डेटा स्ट्रक्चर्स के अंदर किस तरीके से इस्तेमाल करना है. सो अगेन दीज आर वेरी बेसिक एग्जांपल्स. कॉम्प्लेक्सिटी तब आपके पास कॉम्प्लेक्सिटी आती क्यों है, हम डेटा स्ट्रक्चर्स के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं. तो वन ऑफ द पर्सपेक्टिव्स जहाँ पर हमने इसको थोड़ा बेहतर करना है, या जिस रीजन की वजह से हम इसको कह रहे हैं कि ये बहुत ट्रिवियल सा है, इसको कॉम्प्लेक्स करने की इसलिए जरूरत पड़ती है फर्स्ट लेवल के ऊपर, इसलिए बिकॉज यू वांट कि आपका डेटा जब आपके डेटा स्ट्रक्चर में या आपके एरे के अंदर जब आपकी आइटम्स जा रही हों, तो इन ऑर्डर टू हैव एफिशिएंट एक्सेस टू दोस एलिमेंट्स यू वांट कि वो एज मच एज पॉसिबल आपकी एलिमेंट्स यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो. जिस तरह से ट्री लॉपसाइडेड हो जाता था, उसी तरह से ये भी सारी एक ही, अगर वो सारी एक ही एलिमेंट के अंदर जाके फिट हो गई, तो दैट इज अगेन गोइंग टू डिफीट द पर्पस ऑफ योर एंटायर डेटा स्ट्रक्चर प्लान. सो पहले तो हमने देखना है कि व्हाई वर वी सेइंग कि ये हमने बना तो लिया है एक एल्गोरिथम, बट व्हाई आर वी सेइंग कि ये व्हाई इज दिस नॉट सच ए ग्रेट वन. It's because let's say कि मैंने कहा है कि जो मैंने टेबल साइज रखा है, I've taken a funny number, लेकिन उसका भी रीजन है कि बेसिकली वही प्रॉब्लम जो मैं इस वक्त, so the problem, let me try to illustrate the problem. The problem I'm trying to solve is कि I want कि अगर मेरे पास array है, we want to kind of imagine that this is a huge array.
मैं चाहती हूँ कि जब मेरे पास इंसर्शंस हो तो मेरे पास ऐसी कीज आए कि जब चेन्स बने तो वो चेन्स यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो। तो आई डोंट वांट कि इन 3 जगहों के ऊपर लंबी लंबी चेन्स बन जाए और ये सारी चीज खाली रह जाए। दैट इज नॉट व्हाट आई वांट, बिकॉज दैट इज गोइंग टू स्पॉइल द सर्च टाइम फॉर द एलिमेंट्स जो कि इस चेन के इन चेन्स के एंड के ऊपर आएंगे। आई वांट रीजनेबली शॉर्टर चेन्स दैट आर स्प्रेड आउट throughout this entire array that I'm using. So एक प्राइमरी लेवल के ऊपर जो आप एक चीज करते हो ना, वो वाले ये कोलिजन्स को रिड्यूस करने के लिए वन वे इज टू मेक श्योर कि आपका टेबल साइज जो है ना वो कोई प्राइम नंबर हो। जब आप प्राइम नंबर रखते हो ना तो आपके मॉड के जो आंसर्स होते हैं ना वो ऑटोमेटिकली थोड़े ऐसे हो जाते हैं कि वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। सो फॉर इंस्टेंस अगर हमने 10,000 ना लिया होता, 10 ले लिया होता, एंड लेट्स से कि हमारे पास कीज भी जो सारी आ रही होती वो ऐसी होती जिनके एंड के ऊपर 0 है, तो हर दफा मैं मॉड करती तो मेरे पास आंसर क्या आता? एक ही पे चले जाते सारे। एक सारे का सारा कुछ इधर ही चला जाता है। So one trick kind of that is used, one basic trick that is used to make sure कि सारी की सारी चीजें आपकी एक, हमने ये तो देख लिया है कि कोलिजन आ गया तो उसको हैंडल कैसे करना है, बट ऑल्सो इन द सेम कॉन्टेक्स्ट इट इज नॉट आइडियल कि बहुत सारे कोलिजन्स आए। यू वांट कि आपकी चीजें जितनी भी आ रही हैं आप कोशिश करो कि इस डायमेंशन के अंदर वो डिस्ट्रीब्यूट प्रॉपर तरीके से हो रही हो। सो एक तो तरीका होता है उस कोलिजन्स के प्रोबेबिलिटी को रिड्यूस करने का, जो आप टेबल साइज ले रहे होते हो उसको एक प्राइम नंबर ले लो ताकि इस तरह के कोलिजन्स जो हैं वो प्रॉब्लम फिर भी होगी लेकिन वो रिड्यूस हो जाएगी। अब दूसरी चीज जो कर रहे हैं हम, इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को अगर हम एनालाइज करें और हम अपने ऊपर हम अपने प्रॉब्लम को हम कह रहे हैं कि जो हमारे पास कीज आएंगी, ऑल ऑफ माई कीज आर गोइंग टू बी मैक्स 8 कैरेक्टर्स लॉन्ग। ठीक है, ये आपको प्रॉब्लम के कॉन्टेक्स्ट से पता है कि आपके पास 8 साइज की कीज आने लगी हैं। आपको पता है आपकी ASCII वैल्यूज जो हैं वो 127 तक होती हैं। सो the maximum key value that means that I can generate is going to be 1016 because value maximum अगर मेरे पास maximum value भी आ गई हर possible index के ऊपर और मेरे पास की साइज ही 8 है, तो every time that I generate something from here वो इससे बड़ा नंबर तो आएगा नहीं मेरे पास। So I have a table that is of this size और वो जो की वैल्यूज मेरे पास आ रही हैं इस हैश फंक्शन के थ्रू वो बेसिकली इस 10,000 के अंदर से तकरीबन 1,000 की जगह ही इस्तेमाल कर रही हैं। सो दैट इज व्हाई वहां पर लिखा हुआ था कि ये हमने बस एक तरीका तो सोच लिया था जबरदस्ती एक स्ट्रिंग को नंबर के अंदर कन्वर्ट करने का, बट अगर हम इसको थोड़ा सा फर्दर एनालाइज करते हैं तो दैट कन्वर्जन इनटू अ नंबर इज नॉट मेकिंग श्योर कि जब मैं इन चीज़ों को इंसर्ट करती जाऊंगी इनटू माय डेटा स्ट्रक्चर तो वो थोड़ी बेहतर तरीके से स्प्रेड हुई हो, एंड वी वांट देम टू बी स्प्रेड आउट इवनली ताकि जब हम सर्च कर रहे हो तो हमें किसी एक जगह के ऊपर लंबी सर्च नहीं मिले, हर जगह के ऊपर छोटी छोटी सर्च मिले। सो इन दैट कॉन्टेक्स्ट this is why we were saying that this wasn't a great hash function because ये आपकी बड़े टेबल्स के लिए this is not producing a good distribution of keys। इसके अंदर हम थोड़ी सी वेरिएशन ला सकते हैं। अगेन अब ये थोड़ा सा रैंडम लग रहा है, ये काम थोड़ा सा रैंडम भी होता है, फिर थोड़ा सा आप इसके ऊपर थोड़ी सी टेस्टिंग भी करके देखते हो। सो अगेन इतना भी एडहॉक नहीं है। when you're creating a hash function तो it might be कि आप थोड़े से एडहॉक तरीके से चलो लेकिन थोड़ी सी फिर टेस्टिंग करके इसके अंदर थोड़ी सी प्रोबेबिलिटी भी आ जाती है, सो दैट यू वांट टू सी कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि ये वाली चीजें आएंगी और फिर इसको किस तरह से करना है। बट लेट्स से कि अगेन इस वक्त हमारा फोकस बहुत ज्यादा ये नहीं है कि हैश फंक्शन क्या होना चाहिए, वी जस्ट वांट टू सी कि वो डेटा स्ट्रक्चर में कैसे फिट आएगा। बट इफ आई वांट टू गिव यू अ काइंड ऑफ एन आइडिया कि मैं ये कैसे सोचा गया है कि हम अपना हैश फंक्शन ये बना लेते हैं, यू कुड काइंड ऑफ सी हमने प्रॉब्लम को थोड़ा सा कंटेन किया। हमने कहा कि आवर की इज गोइंग टू बी एटलीस्ट 3 कैरेक्टर्स लॉन्ग, और उसके बाद हमने कहा है कि आवर वी आर गोइंग टू से कि वो जो इस्तेमाल हो रहे होंगे कैरेक्टर्स वो उसके अंदर अल्फाबेट्स होंगे और उसके अंदर एक स्पेस कैरेक्टर भी हमने इस्तेमाल करना है। सो एक हमने
ये कहा है कि अब हमने ये नहीं करना कि सारी की सारी की ASCII वैल्यू उठा लें. व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज कि की के जो भी आपके पास की आई है, सो वी हैव सेड कि वो एटलीस्ट 3 कैरेक्टर्स की होगी, तो उसके अंदर से पहले वाला कैरेक्टर लेंगे, उसके बाद सेकंड वाला कैरेक्टर लेंगे, उसको हम 27 से मल्टीप्लाई करेंगे जस्ट टू काइंड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन प्रोड्यूस करने के लिए किसी तरीके से, और फिर थर्ड वाला जो कैरेक्टर है उसको 729 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर ये इस सारे की वजह से आपके पास कुछ थोड़ी सी डिस्ट्रीब्यूशन क्रिएट हो जाएगी. वी आर नॉट इवन यूजिंग द एंटायर की इन दिस कैलकुलेशन, और फिर एंड में उसको हम मॉड कर देंगे. और और इसके ऊपर अगर आप थोड़ी सी प्रोबेबिलिस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन चेक करो, which we are not focusing on it right now, but let's just take it for granted that I am saying कि अगर आप कोई भी 3 लेटर्स पकड़ोगे तो आपके पास इस साइज की एरे के अंदर ना आपकी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो ठीक सी आ रही है. इसको चेक अगर आपने चेक करना है तो यू कैन यूज सम प्रोबेबिलिस्टिक फंक्शंस, यू कैन जस्ट जनरेट द वैल्यूज एंड सी के किस किस्म का स्प्रेड आ रहा है. लेकिन अगेन अगर आप थोड़ी सी वेरिएशन करते हो ना तो आपके पास स्प्रेड बेहतर आना शुरू हो जाता है. करनी कैसे? Did somebody leave their mic off or is that I think somebody got themselves unmuted accidentally. Sure. So इस किस्म की वेरिएशंस करके, इस तरह की थोड़ी सी चेंजेस करके यू कैन लैंड अपॉन स्लाइटली बेटर हैश फंक्शंस. और इसको थोड़ा सा बेहतर अगर हम देखें तो लेट्स से कि इधर हमने कहा है कि रैंडम कोई भी 3 रैंडम लेटर्स हों तो आपकी डिस्ट्रीब्यूशन इज कमिंग आउट टू बी फाइन. लेकिन अगर आपकी कीज जो हैं वो इंग्लिश वर्ड्स हैं, लेट्स से you know in your problem you will, अगर आपको पता होगा कि आपका कॉन्टेक्स्ट क्या है, तो अगर आपको पता है कि मेरे पास जो वर्ड शुरू में जो 3 लेटर्स आ रहे होंगे वो इंग्लिश के आ रहे होंगे, तो देन you can actually check कि इंग्लिश के अंदर जो वर्ड्स हैं वो हर पॉसिबल लेटर कॉम्बिनेशन तो नहीं होती ना. we can conclude that at least. इसका मतलब है कि इफ यू नो कि आपकी जो कीज आ रही हैं वो हर पॉसिबल कॉम्बिनेशन में नहीं आएंगी, वो कुछ पर्टिकुलर कॉम्बिनेशंस के साथ आएंगी, एंड वी आर सेइंग कि आपके पास जो पॉसिबिलिटीज हैं, सो फ्रॉम डिक्शनरी स्टैटिस्टिक्स वी नो कि आपके पास सिर्फ 2851 पॉसिबिलिटीज हैं जो आपके पास की में जो आपने इनपुट डालना है उसमें ही वो आपके पास रिस्ट्रिक्शन डाल गई है. इसका मतलब है जब आप हैश करके अपना इंडेक्स भी निकालोगे तो वो भी फिर से छोटे सेट के ऊपर रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा. तो अगर हम फिर 2 चीजें आपने देखनी है, एक तो आपने स्प्रेड भी देखना है, लेकिन स्प्रेड उस कॉन्टेक्स्ट से देखना है कि यू विल नो कि आपके पास कीज की रेंज क्या आ रही होगी. तो उस रेंज को भी देखना है कि वो इस प्रॉब्लम के अंदर फिट आती है या नहीं आती. So an even better hash function for instance could be something like कि आप वापस उसी टेक्निक के ऊपर चले जाओ कि आप हर लेटर को निकाल रहे हो, लेकिन इसके अंदर लेट्स से आपने उसको 37 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया और फिर अगेन प्रोबेबिलिस्टिकली इसको चेक करोगे इसके बाद वैल्यूज कैसे आ रही हैं. सो इसके अंदर आफ्टर सम प्रोबेबिलिस्टिक चेकिंग एंड सम डेटा एनालिसिस you will be able to tell के ये जो है अब ये प्रॉपर तरीके से स्प्रेड कर रहा है. so let's say we are going to go with this. so again आप लोगों को जब टेस्ट वगैरह आएंगे आप लोगों को इतने कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए नहीं मिलेंगे कि मैं इंग्लिश का हर वर्ड इसके अंदर डालना चाहती हूँ तो मुझे कोई हैश निकाल के दो. इफ यू गेट दिस क्वेश्चन तो वो उसको इतना स्कोप किया गया होगा कि आप उसको हैंडल कर सको विदाउट हैविंग टू अप्लाई टू मच प्रोबेबिलिटी. तो आपने सिर्फ चेक करना होगा कि ये क्या ऐसी वैल्यूज आ रही हैं जो स्प्रेड हो रही हैं या नहीं. और वी विल टेक अ लुक एट स्मॉलर प्रॉब्लम्स जहां पर आपको टेबल इतना बड़ा नहीं चाहिए होता, 10,000 का नहीं चाहिए होता. ये वाले हैश फंक्शंस बनते कैसे हैं? अगेन दिस इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, जिस प्रोसेस को स्टडी करना हमारा काम नहीं है, बट आई जस्ट वांट टू गिव यू अ फ्लेवर बिकॉज जो हम अपनी इम्प्लीमेंटेशन में यूज करें वो बहुत सादा है. यू डोंट वांट टू थिंक कि इसी तरह के होते हैं. आपके पास एक्चुअली हैश फंक्शंस बनाने के अंदर ये सारी की सारी पॉसिबिलिटीज आप कंसिडर कर रहे होते हो कि मेरे पास किस किस्म की कीज आ रही हैं और उन कीज को अगर मैं कन्वर्ट करूंगी तो कन्वर्जन के बाद
एम आई मेकिंग श्योर कि वो स्प्रेड आउट हो रहे हैं इवनली या वो नहीं हो रहे, and all of that has to be considered while you're designing your hash function. But again, designing the hash function is not that part is not part of our course. But essentially you should know कि जब बन रहा हो जी मैं वो जो पीछे कोड लिखा हुआ था फॉर वाला, उसके अंदर हमने 37 वगैरह से मल्टीप्लाई किया था, वो क्यों किया था? एज इन स्पेसिफिकली यहाँ पे 37 क्यों किया था? ये रैंडम है या पीछे हमने कुछ देखा? दिस इज काइंड थोड़ा सा रैंडम भी है, लेकिन बेसिकली ना इसकी वर्किंग मैंने स्किप की हुई है। सो थोड़ा सा रैंडम, जब ये प्रोसेस होती है ना, आप ये वाला नंबर थोड़ा रैंडमली भी पिक कर सकते हो, ठीक है, या आप कुछ पिक कर, इधर मैंने रैंडमली पिक किया, लेकिन पीछे जो है ना हमने, कैन यू सी, ये भी थोड़ा रैंडम ही है। मतलब मैंने डाला हुआ 27 और मैंने कहा हुआ 27 मैंने इसलिए लिया है क्योंकि ये नंबर्स हैं और ये स्पेस है, तो इन अ वे ये भी काइंड ऑफ रैंडम पिकिंग ही है। लेकिन सो यू स्टार्ट विद अ स्लाइटली एड हॉक प्रोसेस एंड थोड़े से कुछ रूल्स होते हैं जिससे आपको कुछ गेस, और ओवर विद टाइम जब जो लोग इसके अंदर एक्सपर्टीज रखते हैं, विद टाइम दे काइंड ऑफ फिगर आउट कि इस थोड़ी सी इस तरह का नंबर डाल देंगे या इस तरह का नंबर डाल देंगे तो वेरिएशन आनी शुरू हो जाएगी। यू माइट हैव सम एक्सपीरियंस ऑफ दैट विद प्रोबेबिलिटी, लेकिन उसके बाद आप इसके ऊपर एनालिसिस करके चेक भी कर सकते हो कि अगर मैं इन सबको हैश का इस सेट ऑफ वैल्यूज को हैश करूं तो व्हाट इज लेट्स से द स्टैंडर्ड डिविएशन दैट इज कमिंग फ्रॉम what is the spread of values that I'm getting. So कुछ जब आप create करते हो तो थोड़े ad hoc तरीके से भी create हो सकता है, लेकिन उसके बाद आप ये नहीं करते कि ad hoc तरीके से, ये नहीं होता कि आपको immediately पता चल जाएगा कि ये मैंने नंबर डाल दिया तो इसका स्प्रेड बड़ा अच्छा आ रहा है। ये वाली इसकी वर्किंग करनी पड़ती है, और उस वर्किंग के अंदर फिर आप करते हो कि वो हैश करके स्टैंडर्ड डिविएशंस वगैरह कैलकुलेट करते हो। जो हम एग्जांपल कर रहे हैं ना, आई विल सी इफ आई कैन इंक्लूड अ स्टैंडर्ड डिविएशन। इन फैक्ट देयर शुड बी अ स्टैंडर्ड डिविएशन फंक्शन इन इट। हम पता नहीं कवर उसको करें या नहीं, लेकिन वो इसलिए डाला हुआ है ताकि वी वांट टू सी कि जब मैंने हैशिंग करनी है या मैं हैशिंग कर रही हूँ तो विद एवरी हैश आई एम एबल टू फिगर आउट, I am able to collect probabilistic data that will tell me कि ये spread बेहतर कर रहा है या नहीं कर रहा। So ये you can say कि ये जब नंबर सेलेक्ट होता है और फिर मैंने इसको मल्टीप्लाई करना है, हर नंबर को मल्टीप्लाई करना है, क्या बड़ा करना है, छोटा करना है, किस किस्म की चीज मैं अचीव करने की कोशिश कर रही हूँ। यू कैन से कि वो थोड़ी सी एडहॉक तरीके से होती है, और उसके बाद उसको आप प्रोबेबिलिस्टिक तरीके से फाइन ट्यून करते हो। यू माइट एक दफा इसको रन करके मे बी आपको पता चले ये बहुत अच्छी नहीं चल रही, इसको मैंने चेंज करके 40 के ऊपर कर देना, बट बेसिकली वो सिर्फ देख के नहीं पता चलता, इसके अंदर थोड़ा सा बेहतर एनालिसिस करना पड़ता है, थोड़ा सा डिटेल्ड एनालिसिस करना पड़ता है जिसका हम फ्लेवर थोड़ा सा देख लेंगे। बट अगेन बिकॉज ये हम तो वैसे स्ट्रिंग वाली हैशिंग एग्जांपल में कर भी नहीं रहे, हम नंबर वाली ही कर रहे हैं, सो इट्स नॉट इस तरह के एग्जांपल को हम नहीं देख रहे होंगे, बट एसेंशियली जस्ट टू अगेन टू गिव यू अ फ्लेवर फॉर कि वो हैश फंक्शन हमेशा सिर्फ ये नहीं होता, आपके पास कुछ थोड़ी सी उसके अंदर और थोड़ी सी फैंसी चीज हो रही हो सकती है, और वो जो क्रिप्टोग्राफी के लिए इस्तेमाल होते हैं वो इससे भी ज्यादा फिर कॉम्प्लेक्स होते हैं, उसके अंदर आप इससे भी ज्यादा फिर चीजें डाल रहे होते हो उसके अंदर, स्पेशली क्योंकि आपका मकसद ये होता है कि इसको कोई रिवर्स ना कर सके। तो उस केस के अंदर फिर इसके अंदर और किस्म के साइंटिफिक प्रोसेसेस आ जाते हैं। सो आपको ये नहीं कहा जाएगा कि एक ऐसा फंक्शन डिजाइन करो और बताओ कि यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा, दैट इज बियॉन्ड द स्कोप ऑफ आवर कोर्स। और ये जरूरी नहीं है 37 से ही चले, ये प्रोबेबली 38 से भी चल जाएगा ठीक, एक नंबर कम से भी ठीक चल जाएगा। सो इट्स नॉट सम मैजिक नंबर जो कि कहीं से निकला है। So what you have to do basically, इनको जब डिजाइन कर रहे होते हैं तो what you have to make sure of is कि एक तो डिस्ट्रीब्यूशन इसकी आ रही हो आपके पास ऐसी जिसमें आपका पूरा का पूरा डेटा स्ट्रक्चर कवर हो रहा हो, और दूसरी चीज है कि इट शुड बी एफिशिएंटली कंप्यूटेबल, व्हिच मींस कि इसमें जब आपने ऑपरेशंस डालने हैं ना तो वो सिंपल ऑपरेशंस कोशिश करो कि सिंपल ऑपरेशंस हो। अगर आपकी की बहुत बड़ी है तो यू माइट ऑल्सो नॉट वांट कि हर कैरेक्टर को आप कुछ कर रहे हो, क्योंकि इधर पीछे वाले में आपने देखा है कि इसने हर कैरेक्टर नहीं पिक किया, हमने कहा था कि हमारा 8 कैरेक्टर्स की होगी,
लेकिन इस कंप्यूटेशन में उसने सिर्फ 3 कैरेक्टर्स पिक किए। सो यू हैव टू मेक श्योर कि वो वी हैव टू मेक श्योर ऑफ दिस बिकॉज ये सारा काम हम इसलिए कर रहे हैं कि आपकी वो जो सर्च है और आपकी वो जो इंसर्शन है वो जल्दी से हो जाए। तो अगर हमने अपना ये वाला फंक्शन ही डिफिकल्ट टू कंप्यूट क्रिएट कर दिया, जिसका मतलब है कि इन ऑपरेशंस को परफॉर्म करना अगर बहुत हैवी हो गया प्रोसेसर के लिए, तो अगेन यू आर डिफीटिंग द एंटायर पर्पस ऑफ putting in a hash table. So whenever you are picking a hash function, make sure कि वो उसकी computation जो है उसके अंदर कोई बहुत ज़्यादा loops या कोई बहुत ज़्यादा इस तरह की चीज़ नहीं चल रही हो, and it produces a good distribution कि उसके answer में every time you get the answers given some set of keys, तो वो answers जो हैं वो आपके पास आपकी पहली first dimension list की first dimension के अंदर वो evenly distribute हो जाए. So keeping this in mind, let's take a look at a hash table ADT, जिसके अंदर हमने करना है कि we are going to essentially keep an array of binary search trees. So the implementation that we're using, इस दफा हम कर रहे हैं कि instead of just handling the keys, we are going to use an implementation जो कि actually data hold कर सके. So we want an implementation जिसके अंदर जो data item आएगा उसको हमने generically define कर दिया called data type, ताकि we can use this implementation with any kind of data essentially once we've set it up with templates. So we are going to say कि हमने जिस type का data डालना है hash table की implementation के अंदर we are going to call it data type. डाल हम जो मर्जी लें, हम उसको क्या data type रहे हैं, और हर data type, any data type that we want to put into this hash table, it has to have some kind of a key जिसको again वो आपके उस data type के अंदर तो जौन से भी key होगी, हम अपने hash table के अंदर उसको generically we are going to be referring to as key type, जिसका मतलब है कि हमने kind of collapse कर दिया, जिस मर्जी तरह की key आएगी हम उसको एक ही algorithm से handle कर रहे होंगे. So in our implementation we are doing a very generic kind of a hash table. So our जो भी data हम चाहते हैं कि ये eventually इस hash table के अंदर insert हो सके, similar to what we were doing with the binary search tree जो आपको project के अंदर दिया है, you must make sure that the data type that you are preparing to put into this hash table, it should have a function called get key जो कि उस data item की key को return कर दे, and it should have a method called hash जो कि एक unsigned integer receive कर दे, send कर दे वापस after receiving a reference to a key type. So आपके पास, let's say for instance it's going, one data type could be this. So एक चीज, and in fact जो आप लोग binary search tree में कर रहे हो, आप लोग वो accounts ही डाल रहे हो. So your one data type जो कि इन conditions को fulfill कर रहा है, that is this one, जिसके अंदर आपने, so this is your data, और आपने जब अपना data setup किया तो आपने you have decided that my key is going to be an account number, और जिस किस्म के भी आपके account numbers हैं आपने decide किया कि I am going to be representing them as integers. So you are going to have a function called get key जो कि उस account हर account की instance की account number को return कर देगा, and then आपने एक hash function, this is kind of a helper function inserted with each data item ताकि ये हर नंबर का पॉजिटिव फॉर्म रिटर्न कर दे, ताकि आप उसको अपने हैश फंक्शन, हैश वाला जो आपका एल्गोरिथम है वो उसको अपने हैश फंक्शन में इस्तेमाल कर सके. So what the way that this has been planned out is कि you don't, negative index तो आपको नहीं चाहिए, तो इस वक्त आप इसके अपने डेटा के अंदर ही आपने रिक्वायरमेंट डाल दी है कि जब आपके पास हैशिंग के लिए नंबर प्रिपेयर होके आए तो वो पॉजिटिव हो जाए. तो you've said कि जौन सी भी की है आपके पास उसको एब्सोल्यूट के अंदर सेट कर दो.
यू कैन काइंड ऑफ इमेजिन कि अकाउंट नंबर्स जो होंगे वो पॉजिटिव ही होंगे, बट इसको जेनेरिक फील देने के लिए सो दैट यू आर मेकिंग श्योर दैट एनी नंबर दैट यू गेट आउट ऑफ दिस इज गोइंग टू बी अ पॉजिटिव नंबर, ताकि जब आप इसके ऊपर अपना हैश फंक्शन अप्लाई करो तो वो उसको किसी इंडेक्स के अंदर ही डाले जो कि पॉजिटिव होना चाहिए. सो जस्ट टू मेक श्योर कि आपके पास पॉजिटिव नंबर्स आ रहे हैं, तो आपने एक फंक्शन डाला है यहाँ पर जिसका नाम हैश है, एंड यू हैव डन अ गेट की फंक्शन that is going to get the key, that is going to return the key to you. और ये basically जो है ये आपके की के पॉजिटिव वाले फॉर्म को रिटर्न करके दे रहा है. सो जो हमने पूरी उसकी रिक्वायरमेंट सेटअप की है कि वी आर गोइंग टू क्रिएट अ क्लास जो कि आपको आपके डेटा आइटम्स को हैश टेबल के अंदर इंसर्ट करेगी. यू जस्ट मेक श्योर दैट वट एवर डेटा आइटम यू आर सेंडिंग इन वो इन रिक्वायरमेंट्स के साथ कंफर्म कर रहे हैं. सो डेटा आइटम्स हमारे ऐसे होंगे, और जो हमने हैश टेबल इटसेल्फ का स्ट्रक्चर बनाना है, वी वांट इट टू बी एन एरे ऑफ बाइनरी ट्रीज. सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन इज के आपके पास ऐसे लेट्स से एरे होगी, और यहाँ पर आपके पास बाइनरी ट्री, हर एलिमेंट से एक बाइनरी ट्री डिसेंड कर रहा होगा. You can make it in any dimension. और basically ये चीज़ डिसाइड करना कि कौन से बाइनरी ट्री के अंदर आपकी एलिमेंट जानी है, वो आपके हैश फंक्शन से कैलकुलेट होगा. और फिर अगर डिसाइड हो गया कि इस वाले बाइनरी ट्री के अंदर जाना है, अब इस वाले बाइनरी ट्री के अंदर कहाँ जाना है, that is going to be calculated by your binary search tree implementation. So this implementation you are going to assume कि ये बाइनरी, इसके अंदर एक बाइनरी सर्च ट्री इस्तेमाल हो रहा है जो कि ऑलरेडी हम पीछे कर चुके हैं. So a standard binary search tree is going to be used compositely inside your hash table, inside this particular implementation of a hash table. Again, I just want to remind you कि hash table का मतलब ये नहीं होता कि हमेशा ही binary search tree होना चाहिए, लेकिन इस implementation के अंदर we are using a binary search tree. So इस वाला ये पिछली साइड यहाँ पे जो बाइनरी ट्री हर इंडेक्स पे रे के पड़े हुए हैं, तो जब कोलिजन आएगा तो इसमें भी वही चीज उसी तरह से हैंडल होगा ना कि जो सबसे रीसेंट वैल्यू कलाइड हो रही है वो सबसे पहले बाइनरी सर्च ट्री के रूट पे आए. नहीं, बाइनरी सर्च ट्री के साथ ये नहीं होगा, बिकॉज जब हमने लिस्ट के साथ ये किया है, लेकिन लिस्ट के साथ वो हमने इसलिए किया है क्योंकि लिस्ट पहले हमने देखा था कि आपने यहाँ पर एरे रखी हुई थी और यहाँ पर लिस्ट रखी हुई थी. अब वो वाली जो चीज आप कह रहे हो ना कि हम शुरू में डाल रहे थे, वो शुरू में डालने वाला जो कंस्ट्रेंट था ना, वो हमारी इस वाले डेटा स्ट्रक्चर के चॉइस की वजह से आया था जो यहाँ इस वाले डायमेंशन में लगा हुआ है. एंड इफ यू रिकॉल वो सिंगली लिंक्ड लिस्ट थी, एंड इफ यू रिकॉल योर सिंगली लिंक्ड लिस्ट, तो सिंगली लिंक्ड लिस्ट के अंदर यहाँ पर मैंने एलिमेंट डालनी हो तो कैसे मैं डालूंगी? दिस इज माय हेड, ठीक है. सो इधर हम हेड के ऊपर इसलिए डाल रहे थे क्योंकि वो इस वाले डेटा स्ट्रक्चर का कंस्ट्रेंट था. लेकिन यहाँ पर बाइनरी सर्च ट्री अगर आप इंडिपेंडेंटली देखो तो बाइनरी सर्च ट्री में अगर 12 पड़ा हुआ है और 15 पड़ा हुआ है और आपके पास 2 आया है, तो आप कहाँ डालोगे? what is the systematic way of placing लेफ्ट साइड और 2? वो यहाँ पर है. लिंक लिस्ट के अंदर systematic way of placing a new element was over here या फिर over here, यहाँ पर. So लिंक लिस्ट के जब हम लिंक लिस्ट वाला इम्प्लीमेंटेशन इस्तेमाल कर रहे थे तो हमें लिंक लिस्ट के कंस्ट्रेंट के साथ जाना था. अब हम बाइनरी सर्च ट्री यूज कर रहे हैं. So our insertion, once we have decided कि यहाँ डालना है या यहाँ डालना है या यहाँ डालना है, उसके बाद अब उस पर्टिकुलर बाइनरी सर्च ट्री में जो इंसर्शन होगी वो उस बाइनरी सर्च ट्री के हिसाब से होगी. इफ यू आर यूजिंग अ रेगुलर बाइनरी सर्च ट्री जो हमने क्लास में किया है एक्चुअली, which we are expecting to put in here, तो फिर आपकी यही राइट लेफ्ट वाली इंसर्शन होगी. यू कुड इवन
improve this by saying कि इसके अंदर मैं AVL वाला वेरिएशन डाल रही हूँ बाइनरी सर्च ट्री का, तो फिर उसके अंदर इंसर्शन का जो कंस्ट्रेंट है वो AVL ट्री वाला हो जाएगा जिसने के किसी किस्म की बैलेंसिंग करनी है बिफोर इंसर्शन। सो अब ये वाली जो चीज़ है कि वो इसके अंदर आके पहले डलना है या बाद में डलना है या जिस जगह के ऊपर डलना है, that is going to depend on the data structure that you have chosen to place in the second dimension. So your placement within your tree, so किस tree के अंदर डालना है वो hash function आपका decide करेगा, और फिर tree के अंदर किस जगह के ऊपर डालना है वो उस tree का insertion algorithm जो है वो decide करेगा, वो जो भी आपने उस tree के implementation के अंदर रखा हुआ है। So what we want in our hash table to be able to do is you should be able to construct your hash table. You should be able to standard जो हम textbook follow कर रहे हैं lab वाली, उसके अंदर they ask you to make a copy constructor and an overloaded assignment operator. So we have those. We have our destructor. We need, so अब किसी भी कोई भी आप डेटा, हम सारे डेटा स्ट्रक्चर्स के अंदर बेसिकली अकॉम्प्लिश हमने यही करना था, कोई चीज़ इंसर्ट करो, कोई चीज़ रिमूव करो, कोई चीज़ रिट्रीव करके दो ताकि आप उसको देख सको या एडिट करना या जो कुछ भी करना है आप कर सको, एंड देन यू माइट वांट टू क्लियर आउट द एंटायर थिंग. So this is our essential interface that we need in order to use the data structure. और फिर हमने कुछ थोड़े से अपने ना मैनेजमेंट फंक्शंस रखे हुए हैं जिसके अंदर is empty तो आप यूज कर रहे होगे, शो स्ट्रक्चर आप डिबगिंग के लिए इस्तेमाल कर रहे होगे, और स्टैंडर्ड डिविएशन हमने डाला है. वी आर नॉट कवरिंग इट टुडे, लेकिन इसमें मैंने डाल दिया है कि if we once we have done the entire data structure, so if we want to check for a particular set of data कि इसका spread कैसे आ रहा है, so the standard deviation is going to give us some kind of an analysis. So हम थोड़ा सा एनालिसिस देख लेंगे कि एनालिसिस होता किस तरह से, आपको कैसे पता चलता है कि ये अच्छा हैश फंक्शन बना भी है कि नहीं. सो वो उसके लिए वी हैव अ स्टैंडर्ड डिविएशन फंक्शन, बट दिस इज, ये हैश टेबल के लिए नहीं है, ये जिसने भी हैश टेबल बनाया अगर वो चेक करना, ये सॉरी हैश टेबल के यूजर के लिए नहीं है, लेकिन जिसने भी हैश टेबल बनाया वो अगर चेक करना चाह रहा है कि मेरा हैश टेबल अच्छी तरह डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है या नहीं, तो वो अपने एनालिसिस के लिए इस फंक्शन को यूज करेगा. सो दीज आर नॉट स्टैंडर्ड हैश टेबल फंक्शंस, ये आपके स्टैंडर्ड फंक्शंस हैं. कोई अगर किसी ने हैश टेबल का डेटा स्ट्रक्चर इस्तेमाल करना है तो they would want to be able to insert stuff, they would want to be able to remove stuff, they would want to be able to retrieve items and then also maybe change them at some point, edit items or something like that. और आपने ये सारा कुछ करने के लिए, आपने कुछ बुक कीपिंग के लिए you've made a copy table function, और उसके अलावा you have a variable to keep track of कि आपका table size इस वक्त क्या है, and then the core structure that you have जिसके अंदर आपका पूरा का पूरा hash का structure set up हो रहा है, that is essentially an array of binary search trees जिसका size यहाँ पर मैंने dynamically determine करना है when my hash table is instantiated. So इसलिए मैंने basically किया हुआ है कि a pointer to a binary search tree. इसका easy, अगर if you want to ignore like the stuff that we are using to make this generic, essentially ये लिखा हुआ है कि binary search tree जो आप लोग कर चुके हो, आप लोगों ने int tree किया, but हम कह रहे हैं कि binary search tree का pointer बनाओ and call it data table. That this is going to be my hash table. Constructor के अंदर I will initialize it to whatever number of trees that I want, and I am essentially going to get something like this जिसके अंदर मैं tree के roots eventually set कर सकूंगी every time I get an element in जिसको मैंने यहाँ पर डालना है. So ये pointer आपको लग रहा है जी? अपनी बाइनरी ट्री का ये जो ऊपर जेनेरिक टाइप बताया था ना, जी जी, ये जो नीचे लिखा हुआ है जी, इसका वापस बताना थोड़ा कि क्या डिफरेंस था. from what we did in class. If you're हाँ जी. अच्छा, so हमने अपनी क्लास में जब इम्प्लीमेंटेशन की ना, so just उसको थोड़ा सा सिंपल रखने के लिए हमने कहा
कि हम बाइनरी सर्च ट्री के अंदर इंसर्ट ही इंटीजर्स कर रहे हैं। पुट अ बिगर नंबर है, तो हमने कहा कि हम इंसर्ट ही इंटीजर्स कर रहे हैं सो दैट हम वो सारा कुछ ना स्टडी कर सकें कि ये लार्जर है, ये स्मॉलर है, इसको किस जगह के ऊपर डालना है, ट्रिवर्स कैसे करना है। एंड एसेंशियली किसी भी डेटा स्ट्रक्चर के अंदर व्हाट वुड यू वांट टू पुट इन, आपने जिस तरह से अभी आप लोगों को प्रोजेक्ट में दिया है तो आपको कहा है कि अकाउंट ईच नोड is holding account information or each node should be holding student information or each node should be holding customer information, ठीक है। So basically what we want is कि पहली किस्म की जो आपने वो करनी है ना, if we go back one step, जब हमने lists बनाई थी, लिंक लिस्ट ही कह लें, लिंक लिस्ट बनाई थी, तो इफ यू रिमेंबर मैंने टेम्पलेट रखी हुई थी ऑप्शनल फॉर योर असाइनमेंट्स, बट एसेंशियली कैन यू सी कि लिंक लिस्ट के अंदर जरूरी तो नहीं है ना कि आपने हमेशा इंटीजर्स ही डालने हो। कभी कभी हो सकता है कि आपने कैरेक्टर्स डाल दी हो, कभी ये भी हो सकता है कि आपने पूरी की पूरी स्ट्रिंग्स डालनी हो, और कभी ये भी हो सकता है कि आपने पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट्स डालने हो अपने लिंक लिस्ट के अंदर। सो यू वांट इट टू बी अ लिंक लिस्ट ऑफ accounts, let's say. So जब हम linked list को generic करते थे, I'm going one step back because जब आप search binary search tree और उसमें जब आ जाते हो ना, तो आपके पास 2 levels of genericness है, लेकिन linked list के अंदर एक ही level of generic होने का तरीका था। That was के let's say आपके पास, और even array में कहती हूँ, अगर मेरे पास एक array है, because मेरे पास यहाँ draw हुई है इसलिए मैं कह रही हूँ, अगर मेरे पास एक array है, I can make an array of integers. Yes, I can make an array of characters, and I can make an array of students, right? तो अगर मैं एक list class implement कर रही हूँ, लेकिन मैं उसको generic रखना चाहती हूँ कि वो मैं एक implementation कर दूँ, लेकिन उसके अंदर सिर्फ मुझे एक change करनी हो और मैं कह सकूँ कि अब ये integers की बन गई है, या अब ये characters की बन गई है, या अब ये students की बन गई है। उसको करने का तरीका ये था कि आप अपने implementation के ऊपर एक इस तरह की लाइन लिखते हो जिसमें आप लिखते हो कि दिस क्लास इज एक्चुअली अ टेम्पलेट क्लास, आई एम मेकिंग इट जेनेरिक, एंड आई एम गोइंग टू से, सो फॉर माय सिंपलर एग्जांपल, अभी हमारे पास ये नहीं है, आई एम गोइंग टू से कि इसके अंदर, सो अगर ये लिंक लिस्ट है, सो लिंक लिस्ट के अंदर मैंने, आई हैवंट डिसाइडेड येट कि मैंने किस किस्म का डेटा डालना है, लेकिन जब मैं इसको डिक्लेयर करूंगी तो आई विल टेल यू वेदर आई वांट इट टू बी एन इंटीजर लिस्ट or a whatever kind of a list, ठीक है। So what I'm going to do is कि मैं यहाँ पर data type लिख दूंगी, और जब मैं बताऊंगी कि मैंने जिस type का भी linked list बनाना है, so I'm just going to say in my declaration, I'm going to say something like this. So linked list अगर मैंने ऐसे लिखा तो ये इंटीजर्स की लिंक लिस्ट बन गई। अगर मैंने ऐसे लिखा, कैरेक्टर लिखा, अब ये कैरेक्टर्स की लिंक लिस्ट बन गई है, बट ऑल ऑफ दिस इज यूजिंग द सेम कोड दैट आई रोट अर्लियर। लेकिन उसके अंदर मैंने सिर्फ ये किया है कि जब मैंने अपना नोड बनाया है, सो आई जस्ट नीड टू डिक्लेयर कि जब मैं नोड बना रही हूँ तो वो उस नोड के अंदर, are you picking this up or should I just open up the linked list lecture so that you can see? मैम समझ तो आ रहा है, बट लाइक द पॉइंट वेयर जहाँ पे या हमने डिक्लेयर करना होता है कि अब यहाँ से हम टेम्पलेट शुरू करेंगे, लाइक व्हाट पॉइंट इज दैट? टेम्पलेट तो आपके यहाँ से शुरू हो गई ना। The only difference is अगर तो ये टेम्पलेट नहीं होता तो आप कहते हैं हैश टेबल ए, ठीक है। लेकिन अब क्योंकि ये टेम्पलेट है तो दिस इज सेइंग कि whenever you created hash table you have to tell me कि मैंने डेटा टाइप की जगह क्या डालना है और मैंने की टाइप की जगह क्या डालना है। और फिर जब आपने टेम्पलेट बना दी है तो टेम्पलेट के अंदर फिर, अच्छा दिस इज यूजिंग अ टेम्पलेट विद इन अ टेम्पलेट, सो इसके अंदर जो बाइनरी सर्च ट्री की भी जो इम्प्लीमेंटेशन है ना, उसके अंदर भी डेटा टाइप जेनेरिक है। सो इट essentially asking for a data type क्योंकि इसने बाइनरी सर्च ट्री के लिए चूज करना है
कि आपका डेटा टाइप क्या था. So that's why I'm asking, do you want me to open up linked list की template implementation so you can see? क्योंकि इसके अंदर डबल लेवल, इसके अंदर एक्चुअली दो लेवल्स के ऊपर और दोनों लेवल्स के ऊपर 2 लेवल की टेम्पलेट आ गई है. So if the simple level one is not clear, let me know, मैं खोल देती हूँ, लिंक लिस्ट वाला लेक्चर खोल देती हूँ, उसमें सिर्फ 1 लेवल की है टेम्पलेट इस्तेमाल करना. इनफैक्ट जब मैंने ये भी यूज, यहाँ भी लिखा हुआ है ना, ये टेम्पलेट ही लिखा हुआ है, दिस इज काइंड ऑफ अ टेम्पलेट जब मैंने ये किया हुआ था. ये बट ओवर हेयर यू आर यूजिंग प्री बिल्ट टेम्पलेट्स जो कि C++ आपको बना के देती है. सो यू आर सेइंग कि मुझे आई वांट अ वेक्टर और आई वांट अ लिस्ट एंड आई वांट अ लिस्ट जिसके अंदर हैश्ड ऑब्जेक्ट्स चाहिए. सो डिड वी यूज अ वेक्टर और अ लिस्ट इन एनी ऑफ आवर असाइनमेंट्स? STL वाला वेक्टर या लिस्ट इस्तेमाल किया हमने? नो मिस. प्रैक्टिस की थी एक बार, मैंने कोई रिवर्स या दोनों की है, की नहीं याद और वेक्टर की है. कोई एक भी आपने अगर यूज किया है ना, they're used in the same way. कोई एक भी यूज किया ना तो you will recall that you had to say कि मैंने integer का वेक्टर बनाना है. Yes? और you had to say कि मैंने strings का, आप strings का भी वेक्टर बना सकते थे. या अगर आपने कोई अपना ऑब्जेक्ट अपनी क्लास बना के रखी हुई है called student, तो आप students का भी वेक्टर बना सकते थे. And inside the implementation of vector, जिस जगह के ऊपर भी उसको कोई टाइप चाहिए, जब आप ये वाली डेक्लेरेशन करोगे तो ये उस जगह के ऊपर इंटीजर लिख देगा. अगर आप ये वाली डेक्लेरेशन रखोगे तो उसी की कॉपी बना देगा और उस जगह के ऊपर स्ट्रिंग लिख देगा. और जिस जगह के ऊपर आपको स्टूडेंट चाहिए तो वो उसकी बेसिकली टेम्पलेट जो है ना, इसेंशियली अगर आप इसको बहुत रॉ लेवल पर देखो ना, टेम्पलेट इज जस्ट अ कॉपी पेस्टिंग मैकेनिज्म. बिकॉज यू डोंट वांट कि अगर आपने एक दफा लिंक लिस्ट बना दी है इंटीजर के लिए और उसके बाद आपने कैरेक्टर्स के लिए बनानी हो, तो यू डोंट वांट कि वो पूरी की पूरी चीज आप कॉपी पेस्ट करो फिर से और जिस जगह के ऊपर इंटीजर लिखा हुआ था उस जगह के ऊपर कैरेक्टर लिखो. सो टेम्पलेट जो है ना वो एक्चुअली बहुत कॉम्प्लेक्स चीज नहीं है. इट इज बेसिकली जस्ट एन ऑटोमेटेड वे जिसके अंदर ये वाली कॉपी पेस्टिंग जो आपने करनी थी ना, वो वाली कॉपी पेस्टिंग आपका कंपाइलर खुद कर देता है. यू जस्ट हैव टू से कि ये वाली जगह है जहां पर आपने टाइप बदलनी है. So when you're creating your template, when we were creating our template for our hash table, we said कि I am not going to specify, or essentially why I need to say this is because मेरा जो binary search tree भी जो मैंने इसके अंदर इस्तेमाल किया हुआ है ना वो generic है. So you imagine this. एक second, let me clear this up. अच्छा, इमेजिन दिस, जिस तरह से अभी आपने वेक्टर का पिकअप कर लिया ना कि अगर मैंने वेक्टर वो करना है, डिक्लेयर करना है, तो आई हैव टू टेल इट द टाइप टू क्रिएट अ वेक्टर. यस, उसी तरह से आप इमेजिन करो कि आपको मैंने एक बाइनरी सर्च ट्री की इम्प्लीमेंटेशन दी हुई है which asks you to insert in a type over here for the type of data that you want to include and to insert in a type over here for the type of key that you want to include. कि आपकी की integer है, आपकी की string है. पीछे हमने examples देखे हैं, integer string के भी देखे हैं और integer key के भी देखे हैं और string वाले key के भी देखे हैं. So anytime that you want to put in any kind of data, so हम अपने implementation को generic करें ताकि हम इसको इस्तेमाल कर सकें किसी किस्म के डेटा के साथ, और उस डेटा के साथ मेरे पास की एक्सट्रैक्टेबल होनी चाहिए जो हमने पीछे 2 कंडीशंस बनाई थी. सो वो की आई शुड बी एबल टू एक्सट्रैक्ट द की, लेकिन इट डजंट मैटर कि वो की क्या है. सो आई एम गोइंग टू से कि जो मेरा बाइनरी सर्च ट्री है, और लेट मी से दिस कि मैंने आपको बाइनरी सर्च ट्री की क्लास ऑलरेडी दी हुई है, एंड एवरी टाइम यू डिक्लेयर अ बाइनरी सर्च ट्री यू हैव टू टेल इट कि नोड के अंदर डालना क्या है, और जब मैंने नोड के अंदर कुछ डालना है तो उसको इंसर्ट करने की की टाइप मेरे पास क्या आ रही है, इंटीजर आ रही है, क्या कैरेक्टर की आ रही है, क्या किस किस्म की मेरे पास आ रही है. सो इफ आई हैव टू डिक्लेयर अ बाइनरी सर्च ट्री आई विल हैव टू से समथिंग लाइक दिस. अब अगर मैंने स्टूडेंट्स का बाइनरी सर्च ट्री बनाना है तो मैं पहले क्या लिखूंगी यहाँ पर,
I will write student and और अगर मेरी की जो है let's say वो character integer रख लेते हैं for simplicity, I'll have to say कि वो integer है. So binary search tree मैं इस तरह से define करूँगी. अब जो मैं hash table का class लिख रही हूँ इस binary search tree को इस्तेमाल करते हुए उसने भी जो भी चीज उस hash table ने अपने अंदर जो चीज store करनी है वही चीज this binary search tree should be capable of storing, right? क्योंकि इसमें हम सिर्फ ये कर रहे हैं कि binary search tree को use इस तरह से कर रहे हैं कि वो hash table बन जाए. So when we're declaring this inside our hash table class, we need the compiler to be able to copy in the actual data type that we're using and to copy in the actual key type that we're using into this spot, and it is going to be able to copy those values into this spot. क्योंकि मैंने इसके शुरू में कहा हुआ है कि जब भी कोई हैश टेबल मेरी क्लास को इस्तेमाल करेगा उसको बताना होगा कि ये डेटा टाइप क्या है, उसको बताना होगा ये की टाइप क्या है. So whenever somebody declares a hash table, they are going to say student and int, comma int, और फिर मैं कहूँगी कि जो हैश टेबल मैंने बनाया है उसका नाम है h1, let's say. So this declaration, जब आपका compiler चलेगा, this declaration is going to cause a copy of this template to be created, जिसके अंदर वो देखेगा कि अब इधर मैंने इस क्लास के अंदर जिस जगह के ऊपर डेटा टाइप लिखा हुआ है वहां पर स्टूडेंट लिखा हुआ आ जाए. सो इस क्लास के अंदर डेटा टाइप कहाँ लिखा हुआ आ रहा है? इफ यू लुक फ्रॉम द स्टार्ट, यहाँ पर तो नहीं आ रहा, बट कैन यू सी यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है और यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है और यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है. So what is going to happen is कि इन सब जगहों के ऊपर स्टूडेंट लिखा हुआ आ जाएगा. So जब आप इंसर्ट करोगे तो you are going to be inserting a student. जब आप retrieve करोगे तो you are going to be getting the student, a reference to that student. And अब हमारे पास दो चीजें हैं. So we are saying कि जब मैंने hash table declare किया तो second चीज मैंने int send की है. सेकेंड चीज का ट्रैक रखने के लिए मैंने लेबल जो रखी हुई है वो की टाइप रखी हुई है. एवरी टाइम यू सी ए की टाइप इट इज गोइंग टू बी रिप्लेस्ड बाय एन इंट. और एसेंशियली अब अगर हम सारी की सारी टेम्पलेट निकाल दें ना तो दिस इज व्हाट इज गोइंग टू हैपन इफ यू वांट टू क्रिएट अ हैश टेबल ऑफ स्टूडेंट टाइप्स जिसके अंदर उनकी की एंड वैल्यू जो आपने रखी हुई है वो इंटीजर फॉर्मेट में, which could be their registration number or whatever. You just have to make sure कि वो इंटीजर हो. So this is just a way of making this entire thing generic. And given that you can imagine कि binary search tree जो है, binary search tree STL में तो नहीं होता, but you can imagine जैसे STL में आप वेक्टर इस्तेमाल कर रहे होते हो उसी तरह से ये मैंने आपको बनाया दिया है. And you have to make sure कि आपने इसको बताना है कि मैंने किस तरह का binary search tree बनाना है और उसके अंदर की किस तरीके से लगी होगी. So if we have all of this, if we want to look at the implementation now, so what you are going to do is, अब आपके पास उस template के लिए आपने हर function की implementation के ऊपर आपने लिख के बताना है कि this is a template implementation. Let's just kind of imagine कि इसके अंदर जब हम dry run kind of कर रहे हैं तो हम student के लिए ही कर रहे हैं और जो हम की रख रहे हैं वो हमने integer type ही रखी हुई है. So again जब ये compile हो चुका होगा तो उसने डेटा टाइप की जगह स्टूडेंट रख दिया होगा, की टाइप की जगह इंटीजर रख दिया होगा. एंड एसेंशियली व्हाट इट इज डूइंग इज वो कह रहा है कि डेटा टेबल आपका था क्या? बाइनरी सर्च ट्री
किसी पर्टिकुलर टाइप का, जिस टाइप का भी आपने हैश टेबल डिक्लेयर किया हुआ है, जो कि हमने स्टूडेंट और इंटीजर पिक किया था, का पॉइंटर और उसका नाम डेटा टेबल है। सो वी वांट कि वो पॉइंटर जो है उसके पास पूरी की पूरी जिस साइज का भी आपने अपना टेबल क्रिएट करना है उतने सर्च ट्रीज इनिशिएट करने के लिए उसके पास जगह आ जाए। So you're saying data table is equal to new binary search tree for whatever number of binary search trees जो कि आपने यहाँ पर भेजी है. So you can say 10 करना है. This is the point where you would want to say कि मैं I will put a prime number over here ताकि मेरे पास collisions जो है वो कम आए. So this is going to be your table size. So आपने एक array of binary search trees जो है वो यहाँ पर create कर दी है. Again, अगर हम if we want to kind of get rid of this and if we just want to imagine कि ये आपके पास generic नहीं बन रहा, एक ही टाइप का आप बना रहे हो, तो you would just say this कि data table is equal to new binary search tree BST और इसके अंदर let's say हम 7 डाल देते हैं कुछ. It's going to look like this when it is actually being run. So ये आपका हो गया constructor. इसके बाद we have a copy constructor जिसके अंदर you can see कि आपने एक किस्म का helper function इस्तेमाल किया हुआ है, because copy constructor ने भी वही काम करना है, आपके overloaded assignment operator ने भी वही काम करना है. So what you've done essentially is कि आपने एक copy table बनाया है which is doing the actual copying. और वो कॉपिंग ऐसे कर रहा है कि जो आपके पास कॉपी करने के लिए चीज़ आ रही है उसको आपने सोर्स का नाम दिया. सो आप कह रहे हो कि जो द टेबल साइज दैट आई हैव, आई वांट टू इनिशियलाइज इट टू द टेबल साइज ऑफ दिस हैश टेबल दैट आई हैव रिसीव्ड. इसका डेटा टेबल को मैंने उसी साइज के ऊपर इनिशियलाइज करना है जिस साइज के ऊपर मुझे रिसीव्ड वाला है. And then I'm going to copy every binary search tree from the source hash table into this one that जिसके function के अंदर मैं इस वक्त बैठी हुई हूँ. And this is basically assuming ये वाली statement जो है, can somebody give me a guess what the statement is assuming? ये कैसे हो सकता है? What do you need to make sure? What do you need to do to make sure कि अगर आप कहो कि binary search tree 1 is equal to binary search tree 2 हो जाए? You will need to make sure. समझ आया आपका. ये जो statement है, this is essentially doing this. एक binary search tree को दूसरे binary search tree के ऊपर assign कर रही है, right? जी कॉपी कर रहा है. ठीक है, एक इसको this equal to this कर रही है. ये तो कॉपी कर रहा है पूरा हैश टेबल. So this is copying 10 or 20 or 30 binary search trees. लेकिन ये वाली जो स्टेटमेंट है ये एक एक सर्च ट्री कॉपी कर रही है. पहले वाले पे वो कह रहा है कि पहले वाला सर्च ट्री पहले वाले में डाल दो, दूसरे वाला सर्च ट्री दूसरे वाले में डाल दो, and so on. So I'm saying what is the prerequisite for your binary search tree class in order to implement state or in order to make sure that statements like this are properly executed? मैम ओवरलोडेड Operator overloading. ऑपरेटर ओवरलोडिंग. उसका ये ओवरलोडेड होना चाहिए. सो वी आर अज्यूमिंग कि यहाँ पर हम जौन सी भी बाइनरी सर्च ट्री की क्लास इस्तेमाल कर रहे हैं उसके अंदर एक ऑपरेटर ओवरलोडिंग का फंक्शन ऑलरेडी पड़ा हुआ है. सो थोड़ी सी ना अगेन ये डेटा स्ट्रक्चर इटसेल्फ इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन क्योंकि ये 2-3 चीजें कॉम्बिनेशन में इस्तेमाल कर रहा है तो यू हैव टू बी काइंड ऑफ थिंकिंग ऑफ इट ऑन सेवरल लेवल्स. So we know that the binary search tree that we're using in this implementation, वो इसको उसने ये वाली चीज implement की हुई है. That is why this entire function जिसने 10 binary trees पता नहीं copy करने हैं या 20 करने हैं या जितने भी करने हैं वो सारे के सारे आराम से copy कर सकता है through just a simple loop. So as long as you have ensured कि आपके binary search tree का और ये वाला
ऑपरेटर ओवरलोड हुआ है तो फिर आप हैश टेबल का भी ये वाला ऑपरेटर आसानी से ओवरलोड कर सकते हो. So we have our generic function for copy table which we are using over here in your copy constructor. So copy constructor इस situation में use होता है कि अगर आप कह रहे हो कि BS some binary search, आपने binary search tree का एक let's say pointer बनाया हुआ है और फिर आप कहो कि BST is equal to new BST1 कर देते हैं इसको, BST1 is equal to new BST और उसको initialize आपने करना है BST2 इस्तेमाल करके. So your copy constructor has to do the same thing and then your overloaded operator for the hash table has to do the same thing except कि when you are doing something is equal to the other thing, you just have to make sure कि अगर किसी ने accidentally ये statement लिखी हुई है, इसके अंदर आपने क्या करना है, ये statement कोई अगर लिखते हैं, sorry binary search नहीं लिखना चाहिए, hash table 1 is equal to hash table 1. You don't want कि accidentally ये सारा कुछ overwrite हो जाए, so what you've done is you've just checked कि जो दो चीजें कोई किसी ने equal करने की कोशिश की हैं, if they're not the same, तो उस केस के अंदर इस वाले साइड के ऊपर जो भी चीज पहले पड़ी हुई है उसको फारिग कर दो आप और फिर उसको इस जो आपको यहाँ पर सोर्स के अंदर पास हुआ है उससे उसको इनिशियलाइज कर दो and then you're just going to say return because equal जो है वो basically return के अंदर कोई चीज यहाँ पर expect कर रहा होता है. So this is your copy constructor and overloaded assignment operator जो कि दोनों एक ही helper function इस्तेमाल करके implement हुए हैं. You have your destructor which is just going to do this क्योंकि हमारे constructor में essentially सिर्फ ये हो रहा था, आप कह रहे थे कि इसको new कर दो, so make space for 20 binary search trees. And this is saying कि उन 20 binary search trees की जो आपने space allocate कराई हुई थी उसको वापस कर दो. So उसके बाद we have, so this is our core. This is what we essentially have to do. This is our core function जिसके अंदर हमने insert करना है. And we are saying कि insert हमने किस जगह के ऊपर करना है, जो भी हमें अपनी hash calculation से मिलती है. So this is our hash calculation. You can see that it is pretty simple. आप कह रहे हो कि so location is the variable that you've declared to get your hash, your index. So जो भी आपने अपना वो prepare किया हुआ है, अपना array of binary search trees के अंदर जिस जगह के ऊपर भी जाना है उसको हम calculate करने लगे. So we are saying कि hash function जो है वो user का hash, user ने जो node डालनी है, which was basically हमने पीछे example लिया हुआ था account का, और if you remember account के अंदर हमने एक hash डाला हुआ था, वो क्या कर रहा था? Let me go back and show you. कौन सा वाला मैम? मैं दिखा देती हूँ. Yeah. So we're taking this as an example. It's generic, so it can do anything. लेकिन एक हमने example रखा हुआ है. So उधर जिस slide से मैं वापस आई हूँ वहाँ पर ये function call हो रहा था, which is doing essentially this. ठीक है. So we had a function inside our data type जो कि key की absolute value as in key को positive, जो भी मैं उसको value key की value दे रही हूँ उसको वो positive करके मुझे return कर देता था, because we had to make sure कि जी मैम बेसिकली वो ये फंक्शन वही कर रहा था ना कि हैश करने के लिए हमें एक वैल्यू दे रहा था जिसको हम हैश करके बेसिकली इंडेक्स निकाल रहे थे. हैश यहाँ पर हो रहा है, हैश इधर हो रहा है, ये आप इंडेक्स निकाल रहे हो. तो आप कह रहे हो कि जो आइटम है उसका की निकालो,
उसको टेबल साइज से मॉड करो और उसको फिर हैश फंक्शन में डाला है जस्ट टू मेक श्योर कि आपके पास पॉजिटिव वैल्यू आ जाए इन केस किसी तरीके से नेगेटिव आ रही हो. So this is basically your hashing. Essentially अगर आप इसको इग्नोर कर दो ना, कैन यू सी ये आपका हैश मॉड कर रहा है, की वैल्यू लेके टेबल साइज से मॉड कर रहा है और लोकेशन में डाल रहा है. That is essentially what we had to do, right? अगर हम ये सारा, if we just want to kind of ignore the genericness right now, तो essentially हमने सादा हैश, सबसे simplest form of hashing जो था वो ये रखा हुआ था कि आप अपना की पकड़ो और उसको मॉड कर दो टेबल साइज से. The first example that we started out with. तो मैं कह रही हूँ मेरा डेटा आइटम, जो भी मुझे डेटा आइटम इधर पास किया है किसी ने, उसका की निकालो और उसका की मॉड कर दो टेबल साइज से. This is going to give me a number with which I can key into my array. अगर मैं इमेजिन कर रही हूँ कि मेरे पास 4 आ गया, सो मैं 4th वाले बाइनरी सर्च ट्री को एक्सेस करूंगी और फिर उस बाइनरी सर्च ट्री का इंसर्ट फंक्शन कॉल कर दूंगी ताकि उसके अंदर ये वाला आइटम, if there is no binary search tree there, तो वो उसकी रूट में चला जाएगा. If there is an already existing binary search tree there, तो वो रूट के हिसाब से जिस साइड के ऊपर भी उसने जाके इंसर्ट, या पिछली नोट्स के हिसाब से जिस साइड के ऊपर भी उसने इंसर्ट होना होगा वहां पर जाके वो फिट हो जाएगा. सो ये आपका इंसर्शन हो गया. उसके बाद रिमूव के अंदर आपने करना है कि अगर मुझे यही वाली आइटम जो मैंने यहाँ पर इंसर्ट की है इसी को रिमूव करना है, तो द वे आई एम गोइंग टू फाइंड इट इज कि वही वाला हैश फंक्शन की तो उसकी वही होगी ना, उसको मुझे आइडेंटिफाई उसको करने का तरीका यही है दैट आई हैव द की. सो आई विल से ये वाली की लो, इसको हैश करो, जो भी वैल्यू आपके पास वापस आ रही है, इफ इट्स द सेम वन आई एम गोइंग टू गेट द 4 अगेन. कहेगा कि 4 के अंदर जाओ और उसको रिमूव करो. अब ये वाला जो रिमूव फंक्शन है, दिस इज बेसिकली द रिमूव फंक्शन ऑफ माय बाइनरी सर्च ट्री, जिसको मैं उस पर्टिकुलर इंडेक्स के बाइनरी सर्च ट्री के ऊपर कॉल कर रही हूँ. दिस इज गोइंग टू रिमूव दैट वैल्यू. Retrieve is for when I want to either just see the value or if I want के वो वैल्यू मैंने मॉडिफाई करनी है. जिस तरह से आप लोगों को प्रोजेक्ट में कहा हुआ है कि आई माइट वांट टू मॉडिफाई एन अकाउंट, some account details at any time. So मॉडिफिकेशन करने के लिए what you've done is, आपने यहाँ रिटर्न नहीं किया, आपने जिस वैल्यू को वापस लेके जाना है उसको वापस ले जाने के लिए you've basically given by reference, आपने एक रेफरेंस पास किया हुआ है ताकि जब आप हैश करके उसको लोकेट कर लो, तो you've located, उसको लोकेट करने के लिए आपने बाइनरी सर्च ट्री की रिट्रीव को कॉल किया. आई एम जस्ट ट्राइंग टू काइंड ऑफ शो दिस कि essentially इस इम्प्लीमेंटेशन के अंदर the complexity is just coming from your binary search tree, or assuming कि हमने binary search tree already बनाया हुआ है, so we are just using the retrieve of the binary search tree, we are using the remove of the binary search tree, and we are using the insert of the binary search tree. हमारा binary search tree ऐसे setup हुआ हुआ है कि जब वो retrieve करता है तो वो की के हिसाब से जौन सा भी आइटम उसने फाइंड किया हुआ है वो उसका रेफरेंस यहाँ पर आपको दे देगा. Because you are going to have a reference to that item, you are going to be, अगर आपने खाली डिस्प्ले करना है तो आप डिस्प्ले कर दोगे, अगर आपने उसमें कोई चेंजेस करनी है तो आप उसके अंदर चेंजेस कर दोगे, एंड देन यू आर गोइंग टू बी डन विद जो भी आपने उस आइटम के साथ करना था. अगर आपने, if you don't want to get rid of the binary tree allocations, लेकिन आप trees themselves उनको खाली करना चाह रहे हो, तो बेसिकली आपके पास एक क्लियर का फंक्शन है in which you are iterating through your array, और आइटरेट करते हुए आप हर ट्री के ऊपर जाके कहते जा रहे हो कि इसकी वैल्यूज भी क्लियर कर दो, इसकी वैल्यूज भी क्लियर कर दो, इसकी वैल्यूज भी क्लियर कर दो. सो essentially in this clear and this retrieve and this remove and this insert, ये चारों फंक्शंस जो हैं ये आपके बाइनरी सर्च ट्री के फंक्शंस हैं.
जिसके हिसाब से आप इंसर्शन और रिट्रीवल और ये सारा कुछ कर रहे हो. And is empty is just going to check कि आपके सारे के सारे जो trees हैं, so you have some kind of an empty checking function written inside your tree, and what you're doing over here is you're iterating through all of the trees and you're saying कि अगर सारे के सारे trees जो है वो empty हैं तो फिर true return कर दो. अगर आपका कोई भी एक tree है जो कि empty नहीं है तो that means your hash table is not empty. The first non-empty tree that you hit, you are going to say कि ये condition false होगी. It's not empty anymore. So these are your basic hash table functions. Any question? I'm going to stop मैम the टेम्पलेट के साथ ना होता वैसे तो कंपैरेटिवली ज्यादा आसान होना था समझने में. किसके साथ? You know, अगर ये टेम्पलेट के साथ ना होता तो कंपैरेटिवली ज्यादा आसान होना था. टेम्पलेट के बगैर इसमें कुछ भी नहीं होना था. I can do it without the template as well. What I want is कि for your lab, I'm going to give you this code so that you can actually figure out कि आपको template अगर दी हुई है ना तो उसको इस्तेमाल कैसे करना है. Because that is essentially in a practical situation, that is what you will have to do. क्योंकि practically जब आप practical कोई काम कर रहे होगे ना तो nobody is going to say कि ये data structure बनाओ, क्योंकि वो data structures आपके पास बने पड़े होंगे. You are going to be required to use a data structure and you are going to be required to use a template. So for a concluding example, I want कि मैं और ये है इतना, can you see कि इसके अंदर actually code क्या है? अगर इसमें से मैं template हटा दूँ ना, तो if I just highlight out to you, let me get rid of the annotation. अच्छा, अगर इसमें टेम्पलेट नहीं है ना, इसमें खाली ये चीज है. In your insert, you are just going to say location निकाल के दो, और लोकेशन मुझे ऐसे निकाल के दो कि ये गेट की भी हटा दो. आप कहोगे की मॉड टेबल साइज से आपकी लोकेशन आ गई, और फिर उस लोकेशन के ऊपर जो ट्री पड़ा हुआ है उसके अंदर इंसर्ट कर दो. So ये सारा all of this mess will go. It will just be लोकेशन डिटरमिन करो और उस लोकेशन के ऊपर इंसर्ट कर दो. यहाँ पर भी इट इज द सेम. लोकेशन डिटरमिन करो, लोकेशन के ऊपर से रिमूव कर दो. यहाँ पर भी इट इज आल्सो द सेम. लोकेशन डिटरमिन करो और वहां से रिट्रीव कर दो. जो एक्चुअल कोड यहाँ पे चल रहा है वो एक्चुअली आपके बाइनरी सर्च ट्री का चल रहा है. अगर आपने इसको नॉन जेनेरिक तरीके में करना है ना तो वी कैन एक्चुअली डू दिस के जो आप लोगों ने, लेट मी डू दिस, वी हैव क्वाइट अ बिट ऑफ टाइम, सो लेट्स डू दिस के I can give you one exercise is जिसके अंदर आप integer वाले binary search tree के ऊपर hash table kind of layer on करो, and then we can have an exercise in which I can give you this entire template code and you can run it and test it out for different types of these things. ये तो अकाउंट है ना, मैंने बना के दिया हुआ है, बट यू कैन एक्सपेरिमेंट विद के अकाउंट के अलावा अगर आप अपने मर्जी के भी इसके अंदर ऑब्जेक्ट्स डालना चाहते हो तो वो किस तरीके से डाल सकते हैं. सो आई विल पुट इन एन एक्सरसाइज जिसके अंदर आप इसके टेम्पलेट स्ट्रिप आउट करके सिर्फ ये काम कर सको, बट यू आर गोइंग टू सी दैट विल बी रियली सिंपल. So we can do the simpler one first, and then we can do the template handling one. Again, template मैं आप लोगों से लिखवा नहीं रही, लेकिन you should know how to use a template. So even in your assignments, template लिखने की requirement नहीं थी. In your exams, template लिखने की requirement नहीं होगी, but you should know how to use a template. regardless of whether वो template STL से आपके पास आ रही है या वो template मैंने for instance या किसी ने आपको या आपको कहीं से मिला है. और इनफैक्ट जो आप लोग वो भी अपना जो प्रोजेक्ट भी कर रहे हो उसके अंदर से कहीं से कोड आप लोगे, तो इफ यू वांट टू मेक श्योर कि उसके अंदर अकाउंट फिट हो, या तो आपको उस कोड, अगर आपको टेम्पलेट का कोड मिलता है तो यू विल हैव टू स्ट्रिप अवे द टेम्पलेट एंड कस्टमाइज इट फॉर योर अकाउंट, या फिर आपको उसको अकाउंट के हिसाब से यू विल जस्ट हैव टू राइट इट आउट इन दिस वे.
तो इसको अगर मैंने यूज करना है तो मैं हैश टेबल ऐसे बनाऊंगी. मेरी क्लास किधर है? मेरी this is my class. If I want to declare a hash table, of accounts, so I will do this. I will say कि ये integers हैं, and I will say hash table of accounts. मैंने इसका नाम लिख दिया. ऐसे ये declare होगा. But in any case, we have some time to practice this. So you और आप लोगों को project में भी इसी थोड़े से usage को किसी तरीके से clear out करना है. Let's take it up. Next तो आप लोगों का lab है. Lab में आपको ऐसी दे दूंगी जिसमें आप template के बगैर कर सकते हो. But then we can come back to it when we meet next and see के अभी भी अगर gaps हैं तो वो क्या है. ठीक है मैम. So we have a little bit of template वाली चीज to clear out, and we have the वो function check करने के लिए हमने देखना है जिससे आपको पता चलेगा कि आपका hash function itself कितना how efficient is it. Abbas Moiz, Present, ma'am. Abdul Rafi, Abdullah Jawad, Present, ma'am. Abdullah Yusuf, Ehsan Ashfaq, Ali Malik, Danish Zubairi, Present, ma'am. Dan is very present. Farhad, Farhan, Fatima, Present, ma'am. Fazila, Present, ma'am. Hamad Ijaz, Hamza Lagari, Present, ma'am. Hassan Shahid, Hassan Ahmed, Huzaifa, Jahan Zeb, Maham, Present, ma'am. Majid Iqbal, Mehran, Mehroz, Mehwish, Maaz Ahmed, Shahir, Present. Momin Rahman, Present ma'am. Muhammad Ahmed Abbasi, Arham, Present, ma'am. Fasiuddin, Ma'am, Fasiuddin present. Norez, Qasim, Muhammad Sadiq, Muhammad Uzair, Yes, ma'am. Muzammil Ahmed, Present. Rafia, Present. Raisha Baz, Ma'am. Sabaha, Present, ma'am. Safi Zahid, Present, ma'am. Saleha, Syed Muhammad Abbas, Zaim, Present, ma'am. Saleha. Saleha is present, Zaim Hassan, Temur, Present. Zishan, and Zubia. किसी का प्रेजेंट मिस हुआ तो Ma'am, Hassan Shahid. मैम राफिया कह रही है उसका नेट नहीं चल रहा तो अटेंडेंस का कह रही है वो.
मैम नरेश का भी इंटरनेट का इशू, वो इधर ही था अभी थोड़ी देर पहले किया, उसका मैसेज आया मुझे व्हाट्सएप पे। राफिया का मैम प्रेजेंट। माजिद इकबाल प्रेजेंट। मैम मेरी लगा दी आपने ज़हीन की? सेकंड मैं नॉरेज का लगा लूं फिर बताती हूँ। नॉरेज का प्रेजेंट। माजिद इकबाल प्रेजेंट। माजिद इकबाल का प्रेजेंट है। ज़हीम का प्रेजेंट मैम है। ज़हीम। मैम हसन शाहिद। जी ज़हीम प्रेजेंट हो गया। ओके थैंक यू। हसन शाहिद का प्रेजेंट हो गया। एनीवन एल्स? जुबिया की लगाओ। जुबिया का प्रेजेंट। और मैम सबाहा का प्रेजेंट। जी सबाहा इज प्रेजेंट। ठीक है, you're free to go. मैम मैंने एक सवाल पूछना था असल में, दैट वाज अबाउट मोर अबाउट कोल। मैं कोल का प्रोजेक्ट अकेले ही कर रहा था, तो मैंने स्टार्ट किया था। आई एम ऑलमोस्ट हाफ वे डन विद इट, क्योंकि मैं एक बना रहा हूँ, उसको मैं बाद में रेप्लिकेट तो कर ही लूंगा 10 के लिए। अब द थिंग इज, आपने डैश दिया हुआ है हमें उसके अंदर, जो आपने सैंपल रन दिया हुआ है, लेकिन व्हेन यू डिस्प्ले 3 या 4 डैशेस टुगेदर ना, तो वो उसको एक लाइन बना देता है, तो वो बड़ा अजीब सा डिस्प्ले आ रहा है उसका। तो मैं कहता हूँ मैं उसकी जगह एस्टेरिस्क यूज कर सकता हूँ। आप हर चीज में स्पेस डाल दो ना। मैं अगर उसके बीच में मैं स्पेस डाल रहा हूँ, तो वो फिर डिस्प्ले उसका जो है वो डिफिकल्ट हो रहा है करवाना। एस्टेरिस्क बहुत सिंपल है, मैंने एस्टेरिस्क से किया तो वो हो गया। उसमें वो स्पेस नहीं डाली, बड़ी स्पेस, फिर वो उसको उस तरफ ले जाता है, ज्यादा एरे बना देता है इन इटसेल्फ ही, कि पहले डैश डाला फिर स्पेस डाली फिर अगला, यानी कि वो एक एरे की फॉर्म ही बन गई टेक्निकली। सिर्फ एक इन्वोक की स्टेटमेंट लगनी है स्पेस के साथ। स्पेसेस हर लेटर के बाद डाल दो ना, लेटर बाय तो मैं लेटर वैसे ना। मैं कह रहा हूँ अगर कोई और करेक्टर डाल दिया जाए अदर देन डैश, एस्टेरिस्क डाल दो, आई डोंट थिंक दैट लॉजिकली कि उसमें कोई इशू है। आपने करेक्टर ही हिडन रखना है। गेम में वांट के थोड़ा उसको खुला सा नजर आ रहा हो कि वो सोच सके। तो मैं एस्टेरिस्क, एक जितने लेटर्स है उतने एस्टेरिस्क होंगे। हर लेटर के बिटवीन एक स्पेस डाल दो। हर लेटर के बिटवीन स्पेस डाल दो। चलो मैं उसको फिर मॉडिफाई फिर करना पड़ना। मैं एस्टेरिस्क से अभी तक कर रहा था कि एटलीस्ट लॉजिकली तो उसको बनाऊं प्रॉपर पहले। मैम एंड मिस वो अगर एक एंड कोई वर्ड हो उसके अंदर एक से ज्यादा बार एक लेटर आ रहा हो, तो जब यूजर इनपुट करे तो वो फिर सबके लिए एक साथ ही आ जाए ना। जी सब कर सब दो। जैसे डिस्प्ले होने ओरिजिनली चाहिए, हैंगमैन सारे होता। डिस्प्ले होने चाहिए। जी जी सारे कर दो। मिस और एंड पे जो बंदा अगर वर्ड से ही गेस कर ले, तो हमने सारे कैपिटलाइज करके डिस्प्ले करने हैं, यस। जो हमारा आउटपुट आई होगा। डोंट रिमेम्बर मैंने किसी चीज को कैपिटलाइज कराया हुआ है, मुझे खोल के देखना है। मिस कराया हुआ है वो आपने, उसी का लिखा हुआ है आखिरी जो, वो अगर सही हो गया, वेल डन यू गेस द वर्ड दिस वाज कैट आपने लिखा हुआ था, तो कैट का CAT कैपिटलाइज था। ठीक है फिर उसका गेस। कमेंट लिखा था, कमेंट मुझे समझ नहीं आया, तो मैंने कहा मैं सब पूछ लूं एक दफा। मुझे खुद पढ़ लेने दो। डिस्प्ले गेस्ट लेटर्स इन कैपिटल, स्मॉल केस अज्यूम्ड अदरवाइज। ये एंड वाली लाइन ने कंफ्यूज किया था बस। इसका मतलब है कि स्मॉल केस अज्यूम्ड अदरवाइज का मतलब है कि इवन व्हेन द फर्स्ट पर्सन इज एंटरिंग इन द वर्ड्स, तो वो सारे के सारे हम स्मॉल केस में ही अज्यूम करेंगे। सो यू डोंट हैव टू डू एरर चेकिंग फॉर कि अगर मैंने एंटर करते हुए कैपिटल CAT लिख दिया और जिसने गेस किया उसने स्मॉल c लिखा है, तो यू डोंट हैव टू चेक के स्मॉल c है तो वो कैपिटल C की जगह भी आ जाएगा, बिकॉज वी आर एज्यूमिंग योर एंटायर गेम इज प्रोसीडिंग इन स्मॉल केस, एक्सेप्ट कि जब करेक्ट गेस आती है तो आपने वो इनफैक्ट मैंने सैंपल नहीं डाला हुआ, मैं इसमें ऐड कर दूंगी, लेकिन इनकरेक्ट वाला भी जो आता है तो वो बता दे कि ये वर्ड था। ठीक है। ओके मैम, ओके।
Anything else? Can I turn the recording off?